Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel where today we will begin with capsule second of Indian Evidence Act जहां हम कवर करने वाले हैं कुछ important segment which will include your expert opinion, the relevancy of the character as well as facts which need not be proved और फिर चलेंगे हमारे oral evidence and documentary evidence की तरफ। पिछले सेशन में हमने that is capsule 1 में हमने relevancy of the facts का बड़ा चैप्टर पूरा किया था। We are left with dying declaration जिसको हम पढ़ेंगे witnesses and examination of witnesses के साथ ही साथ I hope that you all have seen the Indian Evidence Act important judgment session क्योंकि वो important है आपके लिए, वहां से सीधा preliminary questions बनते हैं। So without wasting any time, let's begin with our session। और session जब भी हम करेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए that you have to download PW app and वहां से आप DPP कलेक्ट करेंगे, along with that आप इस सेशन का PDF वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। So let's begin and let's see that what all things we have to cover today, that is expert opinion, relevancy of character, facts which need not be proved, oral evidence and documentary evidence. We will restrict our section till section 90 today and अगले सेशन में हम सेक्शन नंबर 90 से लेके लगभग स्टॉपल तक कवर करेंगे, हो सकता है हम विटनेसेस को भी कवर कर ले। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट माइनर लॉ MCQ सेशन जो कि यूपी PCSJ में आ रहा है। नाउ एक्सपर्ट ओपिनियन और रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। एक्सपर्ट ओपिनियन वी ऑल नो कहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 45 to 51। ओके, हु इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट किस मैटर्स में ले सकता है, एज वेल एज क्या वो ओपिनियन उसके ऊपर बाइंडिंग है, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए कोई ओपिनियन फ्रेम करने के लिए, along with that when a character is relevant, is it relevant in civil matters only or is it relevant in criminal matters also। ये सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो यूपी PCSJ में आए हैं, दैट इज PYQs को भी एनालाइज करेंगे, प्लस अदर स्टेट जुडिशरी में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। Okay, so I hope you all are set to study Indian Evidence Act. Very soon we are going to begin with CRPC as well. So the first question is, the opinion of expert may be obtained under section number 45. 45 lays down the general rule that when the court can take the expert opinion, कौन से वो matters हैं जहां पे court expert opinion ले सकता है। Is this point clear? Then section number 47, 48, 49 and 50. These are the important sections जो specific एक particular subject के बारे में बताता है on which the court can take expert opinion. So is it science, art, law, finger impression and handwriting and signature? So कोई student होगा जो सारे points को अच्छे से नहीं पढ़ना चाहेगा, जल्दीबाजी में हो सकता है वो question number 1 का जो first option है वो mark करके संतुष्ट हो जाएगा, but you need to read all the 4 options even if you know that first option is the right answer. And in this case first option is not the right answer students because it is given only law। क्या सिर्फ law का, is it any law that the court can take expert opinion? कोई भी law का court expert opinion ले सकता है क्या? No, the answer is D, that is science, art and foreign law। फॉरेन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट कैन गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ पे लॉ तो बहुत ब्रॉड स्कोप हो गया ना, ब्रॉड स्कोप हो गया, दिस मीन्स इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, विच लॉ, but your section number 45 specifically mentions that it should be foreign law, finger impressions and handwriting or signatures। For handwriting we have been given a specific section, that is section number 47। 47A is also there for signatures। Now we will deal with all these sections ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक बार आपके जितने भी सेशंस है वो ब्रश अप हो जाए अगले 2 घंटे में। सेक्शन नंबर 45 says opinion of expert। What do you mean by opinion of expert? First let's understand who is an expert। एक्सपर्ट की बात करें हम तो इट इज अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन पर्टिकुलर फील्ड। अब ये स्पेशल नॉलेज कैसे आया होगा, आइदर बाय ट्रेनिंग और बाय एक्सपीरियंस। ऐसे घर बैठे बैठे तो स्पेशल नॉलेज नहीं आएगा ना हमको, है ना, सब लोग भगवान के घर से सीख के नहीं आते हैं, वी ऑल लर्न आफ्टर कमिंग ऑन टू दिस अर्थ, ठीक है। तो या तो आप ट्रेनिंग से सीखेंगे या एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सो इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यू ऑल आर लॉ एक्सपर्ट्स, ओके, हाउ यू ऑल आर लॉ एक्सपर्ट्स बिकॉज यू आर ग्रेजुएट्स, आपने डिग्री लिया है, ओके, विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। सो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम द ओपिनियन। तो एक्सपर्ट्स की राय कब ली जाती है, जब कोर्ट खुद से ओपिनियन फ्रेम करना चाहता है। सी, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लो ताकि कोर्ट अपना ओपिनियन फ्रेम कर सके। Always remember, expert opinion के basis पे court cannot reach to the conclusion, I mean to say
फाइनल जजमेंट के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, बट इट हेल्प्स द कोर्ट टू फ्रेम इट्स ओपिनियन एंड देन in addition to other relevant facts, it can frame its own judgment. So about any foreign law, art, science, handwriting or fingerprint impressions, these 5 things are exclusively mentioned under section 45. सीधा pre में सवाल आ सकता है. So with that, now we have section number 45A, which says that if court has to frame an opinion as to any electronic evidence, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी क्या, दैट इफ एनी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, एंड व्हाट इज कंप्यूटर रिसोर्स व्हिच इज गिवन इन योर आईटी एक्ट, तो उसके बारे में कोर्ट ओपिनियन किससे लेगा, देन एज पर सेक्शन नंबर 79A ऑफ आईटी एक्ट, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर का ओपिनियन रेलेवेंट रहने वाला है. सो रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट राइट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है. सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, वहां पे आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी आती है, हु सर्टिफाइज एंड गिव यू अ सर्टिफिकेट व्हिच इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, व्हिच वी विल स्टडी इन लेटर और अपकमिंग सेक्शंस. यहाँ पे एग्जामिनर हु इज गोइंग टू एग्जामिन दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ओके, एंड ही इज एन expert in the field of computer resource or any electronic evidence. Section number 46 lays down a very nice general principle which says facts which rebut or supports opinion of the expert are also relevant. If any expert has given any opinion and there is a fact which can either support what your expert has said or which can either rebut, या तो उसकी पुष्टि करेगा या उसके अगेंस्ट में कुछ जाके बोलता है, ऐसा कोई फैक्ट, ऐसा कोई तथ्य वो सुसंगत होगा, दैट विल बी रेलेवेंट. नाउ इन पांचों पॉइंट्स को, पांचों सेक्शंस को, दैट इज जो स्पेसिफिक सेक्शंस है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ओपिनियन से डील करता है, उनका मैंने एक टेबल बनाया है जहां पे फर्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम हमें कहता है ओपिनियन एज टू व्हाट, एंड थर्ड में बोला है किसका ओपिनियन हम यहाँ पे रेफर करने वाले हैं. सेक्शन नंबर 47 सेज इफ द कोर्ट हैज टू फ्रेम एन ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग, देन इन दैट केस कोर्ट किसका ओपिनियन लेगा, पर्सन हु इज एक्विटेंट विद दैट राइटिंग. अब कौन एक्विटेंट हो सकता है, जिसने आपको राइट करते हुए देखा या जो आपको यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपकी राइटिंग को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल यू गो एंड साइन अ चेक इन द बैंक, तो बैंक वाला आपका हमेशा चेक देखता है या आपकी स्लिप्स देखता है, सो दे आर एक्विटेंट विद दैट. और इफ एनी बॉस इज देयर तो हिज पियोन नोज दैट राइटिंग. सो जिस पर्सन ने आपकी राइटिंग के बारे में नॉलेज रखा है उस पर्सन का यहाँ पे ओपिनियन मैटर करेगा. सेकेंड पॉइंट इज 47A which deals with इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर. अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड ओपिनियन फ्रेम करना तो यहाँ हम एग्जामिनर को नहीं बुलाएंगे. एग्जामिनर को कहाँ बुलाएंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन है तो हम यहाँ बुलाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी हु हैड इशूड दैट सर्टिफिकेट टू यू. 48 says when there is any existence of right or custom, कोई राइट है, कोई कस्टम है, उसका ओपिनियन फ्रेम करना है. नॉट every judge knows about the existence of right or custom in any village or any place in India. Then in that case, all that persons who would have where there is likelihood that इस person को पता है कि ये right या custom exist करता है या नहीं करता है, then that person will be called into the court, provided he should have the knowledge. अगर उसको knowledge ही नहीं है ना तो उसको बुलाने से कोई sense नहीं है. For example, there is a custom. For example, okay, there is a village and there is a custom that if two persons got married, और अगर उसमें से one person wants to divorce his wife, then in that case वो क्या करेगा, 4 लकड़ी को तोड़ेगा और उसका divorce हो जाएगा. So is it a valid custom or not? If court wants to prove that, frame an opinion as to that, then court can call any person from that village who is having the knowledge about the existence of that custom. Always remember, you are going to read this with section number 13. सेक्शन नंबर 13 के साथ पढ़ेंगे जो कि हमारे कस्टम्स की ही बात करता है. ओके, रेलेवेंसी एज टू द कस्टम, तो इन दैट केस ऐसे पर्सन को बुलाया जाएगा. ओके. 49 सेज यूजेज और टेनेट्स ऑफ द बिजनेस और एनी सर्कमस्टांसेस जो कि जिससे रिलेटेड की कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना है, देन हु हैज द स्पेशल नॉलेज अबाउट इट, उस पर्सन को बुलाया जाएगा. 50 इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, whether two persons are brother or sister or not. Okay, brother और sister है कि नहीं है, या फिर ये adoptive लोग हैं या adoptive children है, या फिर इन लोगों की मैरिज हुई है या नहीं हुई, उस केस में रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन यहाँ पे ओपिनियन फ्रेम करेगा, या तो फैमिली मेंबर्स उस पर्सन के जिसका भी रिलेशन एंड डिस्प्यूट है वहां पे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं उसके,
या who has special means of knowledge. Now who can be the person who has special means of knowledge? For example, there is a husband and wife who are living in a locality. अब या तो उनके फैमिली मेंबर्स आके यहाँ पे ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर उनके नेबर्स या लैंडलॉर्ड की हाँ जी ये पिछले 2-4 साल से यहाँ पे मियाँ बीवी के रूप में रह रहे हैं. सो यस, देयर रिलेशनशिप एज टू हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट. बट देयर आर 2 important exception to this point which says that no opinion shall be framed or no opinion will be considered in 2 cases. कौन से वो केस है? First is whether the marriage is valid or not. अगर वैलिडिटी ऑफ मैरिज इज डिस्प्यूट अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर मैरिज की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, देन इन दैट केस नो ओपिनियन विल बी कंसिडर्ड. एंड सेकंड इज व्हेन देयर इज प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी फॉर सेक्शन 494, 495, 497 और 498, then in that case उस proceeding में no opinion is required from any person. Court is not going to consider it. Section number 51 lays down a very important principle that, see ma'am, whoever is giving any opinion, then on what grounds his opinion is based, he needs to let the court know about it, and जो उसके grounds हैं, जो उसके basis हैं जिस पे उसने अपना opinion frame किया है, that will be relevant, that will be very relevant. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो बस मैंने बोल दिया because I hold such opinion. No ma'am, किस आधार पे आप बोल रहे हो, किस आधार पे? जैसे कई बार होता है दैट वी आस्क कि मैम जो आप चीज पढ़ा रहे हैं हमें, या जो चीज आप लॉ हमें पढ़ा रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट, किस बेसिस पे आप इसको क्लेम कर रहे हैं? देन आई विल प्रोबेबली लेट यू नो एनी सेक्शन. ओके, सो दैट इज द पॉइंट कि आपको ग्राउंड जरूर बताना है. कमिंग टू द क्वेश्चंस नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एक्सपर्ट ओपिनियन. वी हैव, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the electronic signature of any person, the opinion of certifying authority which has issued the electronic signature is. यहाँ पे जो हम certifying authority का opinion ले रहे हैं, this will be regarded as what? Fact in issue, relevant fact, proved fact, or none of the above. Fact in issue is what? Fact in issue is what? And relevant fact is what? And proved fact is what? Proved fact we all have. ये तीनों ही चीजें हमने डेफिनेशन में पढ़ी है स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में. फैक्ट एंड इशू कोई ऐसी चीज है, राइट और लाइबिलिटी, जो कोई पार्टी क्लेम करती है, असर्ट करती है, डिनाई करती है. ओके, रेलेवेंट फैक्ट when one fact is considered, how one fact is considered to be relevant to other facts as it is given under section 5 to 55. so यहाँ पे अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दे रही है या अपना ओपिनियन रख रही है, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट फैक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट, नॉट फैक्ट एंड इशू. Question number 4. Under which of the following sections of Indian Evidence Act opinion as to digital signature is relevant? Opinion as to digital signature. जब 47 में we have studied about handwriting opinion, then in that case 47A में क्या होगा? Digital signature. Okay. In criminal cases, the fact that the person accused is of good character. Now we will study another topic, that is relevancy of character. Relevancy of character. Whether character is relevant in while the court is taking evidence. Can you give evidence of good character or bad character of any person? Yes or no? पढ़ेंगे इसको, लेकिन पहले क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, गुड कैरेक्टर का आप क्रिमिनल केसेस में क्या एविडेंस दे सकते हो? आंसर इज यस, इट कैन बी गिवन एंड इट इज रेलेवेंट. ओके, हाउ इट इज रेलेवेंट वी विल स्टडी हियर. अब रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर में हमारे पास 2 लोगों का कैरेक्टर के बारे में हम बता सकते हैं अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. दैट इज फर्स्ट द कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस एंड थर्ड इज कैरेक्टर, सेकंड इज कैरेक्टर ऑफ पार्टीज. कैरेक्टर ऑफ विटनेस हम बाद में पढ़ेंगे जब हम विटनेस का चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी पुट अप टू द विटनेसेस, तब इसको डील करेंगे अंडर 140, 146, 154 एंड 156. व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज, तब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 52 एंड 55. डू कॉपी दिस चार्ट इन योर नोटबुक ताकि आपको पता रहे कैरेक्टर से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वो कौन से सेक्शंस है जो कि स्पेसिफिकली विटनेस से डील करते हैं. नाउ कैरेक्टर 2 स्पेसिफिक पर्पस में हम पढ़ेंगे. पहला है सिविल केसेस, सेकंड है क्रिमिनल केसेस. सीधा सीधा जनरल रूल ये है दैट सिविल केसेस में कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट. व्हिच इज दैट सेक्शन?
the section number 52 says that character in civil cases is not relevant except it is otherwise relevant. अगर otherwise relevant है तो that is to say when उसके बारे में कुछ बात की जा रही है तब तो हम उसे relevant कर देंगे. Otherwise general rule says कि civil matters है ना, civil matters में you frame your own issues, वहां पे character के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी. Another point is कि इसका एक और exception ये है section number 55. Section number 55 deals with your civil matters only. Always remember, whenever court has to ascertain the quantum of the damages, then in that case court can consider the relevancy of the character. उस केस में कोर्ट कैरेक्टर को देखेगा how or to what extent the character has to be made relevant in this case. Okay, so general rule civil cases में character is not relevant. Exception is section number 52 which says, देखो कंडक्ट की बात होगी तो सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज मैटर्स में रेलेवेंट है तो उसको 52 में हम कंसिडर करेंगे. कोर्ट कैन कंसिडर इट. एंड 55 में टू असर्टेन द डैमेजेस. नाउ व्हेन वी कम टू प्रीवियस बैड कैरेक्टर, तो इट सेज जनरल रूल प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट अंडर क्रिमिनल केसेस, बट देयर आर 3 एक्सेप्शन अंडर सेक्शन नंबर 54 व्हिच सेज व्हेन द फैक्ट as to the previous bad character is given in reply to any evidence. Reply to any evidence means there is an accused और उस accused के bad character का सामने वाली पार्टी ने अगर कोई evidence दिया then accused can or accused has given any evidence for his good character, then in that case उसके bad character का evidence आप देके ही prove कर सकते हैं that he is a habitual offender. Okay, क्योंकि देखो accused का good character बताया जा रहा है, उसका वकील बोल रहा है नहीं ये तो साक्षात कह सकते हैं कि साधु हैं, संत है, ये तो कभी ऐसा कुछ कार्य कर ही नहीं सकते हैं. If that accused is praised to another level, then in that case you can prove or you can give an evidence showing that he is of a bad character. Second is if character itself is an issue, character is fact in issue, then in that case give evidence for bad character. See, हम evidence क्यों देते हैं? हम evidence इसीलिए तो देते हैं because any fact is an issue. तो यहाँ पे character ही issue में है तो उसके लिए हम definitely evidence देंगे. And third is when there is a previous conviction, the accused has already been previously convicted, तो उस केस में आप बताइए कि इसका previous conviction हो चुका है, इनका जो कह सकते हैं कि कैरेक्टर है वो इसी प्रकार का है, इसलिए इनको वापस से सजा होनी चाहिए. और it creates a strong presumption in the mind of the court that this person has again committed an offense. Okay, section number 53A deals with previous sexual experience. If there is any previous sexual experience, then it is not relevant or no evidence will be given as to previous sexual experience of any person when the prosecution is related to 354 or 354A to D or 376 or 376A, AB, C, D, DA, DB or E on the issue of the consent. Merely because any girl had any previous sexual experience with her consent, then in that case you cannot put a question mark on her character showing that she is of a bad character or she is of a good character. Okay, so character से related ये सारे questions segment था हमारे पास जो कि हमने brush up किया है. अब हम पढ़ेंगे कुछ important question जो यूपी PCSJ में भी आए हैं या फिर other state judiciary में भी आ चुके हैं. Question over here is character of a person for the purpose of law of evidence is not relevant in which of the following. बहुत अच्छे से पढ़ना because there are many confusing statements in these questions. First is that previous good character of the accused in criminal cases, it says not relevant. Not relevant. Not relevant. हम ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस में पढ़ चुके हैं कि क्रिमिनल केसेस में अगर अक्यूज का गुड कैरेक्टर है इट इज रेलेवेंट, तो ये तो सही है. सेकेंड, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट. हाउ इट इज रेलेवेंट? हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, दैट बैड कैरेक्टर अगर है मैम it is irrelevant. It is irrelevant. See here, it is not relevant. कोई बात नहीं, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन if it is into the reply of the good character in criminal cases of the accused, तो फिर आप बिल्कुल दे सकते हो वहां पे उसका bad character का evidence. Okay, that will be relevant. Third is character as affecting the amount of damages in civil cases. This is also relevant. Civil cases में character, be it a good or bad, is relevant when the court has to ascertain any damage. And fourth point is character to prove the conduct imputed in civil cases. क्या यहाँ पे relevant होता है? No, it is completely irrelevant. This is from your section number 52.
52 की हेडिंग ही यही बोलती है, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केसेस इज इररेलेवेंट एक्सेप्ट व्हेन इट इज अदरवाइज रेलेवेंट। सो सेक्शन नंबर 52 से 52 के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct? In civil cases, character to prove conduct imputed is irrelevant. Absolutely, this is the right statement. We need to see that which is the incorrect statement. Second is, in criminal cases, previous good character is relevant. Yes, it is relevant as per your section number 53. Always remember 52 and 55 deals with civil, and 53 and 54 deals with your criminal. Okay, it deals with criminal. अगर हम इनका पेयर बनाना चाहें, तो जो दो लास्ट सेक्शंस हैं वो सिविल से डील करते हैं और जो बीच के दो सेशंस हैं वो क्रिमिनल से डील करते हैं। एंड 53A ऑल्सो डील्स विद प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू एनी सेक्सुअल ऑफेंसेस जहां पे आपका प्रीवियस सेक्सुअल कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग a previous character is not relevant except in reply. This is also perfect, clear. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रीवियस कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता है, प्रीवियस कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अगर रिप्लाई की बात आ जाए जहां पे आपको रिप्लाई करना है, देन इन दैट केस आप कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग previous conviction is not relevant as an evidence of bad character, वहां पे तो डेफिनेटली है। when any person is convicted and उसका previous conviction आपको देना है ये शो करते हुए कि इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, बैड कैरेक्टर का पर्सन है। तो ये देखिए on this point, last point, यहाँ पे previous conviction इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इससे उस पर्सन का कैरेक्टर प्रूफ कर सकते हैं। ओके, उसका कैरेक्टर वहां पे रेलेवेंट है ये चीज बता सकते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हमारा डी पॉइंट है और आंसर हमारा डी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, provisions have been made under certain sections of Indian Evidence Act, so we need to match the entries of list 1 and list 2. This is list 1 and this is your list 2. Opinion of the handwriting expert, section number 47. State of relevancy of fact by person who is dead, that is dying declarations, section point number 3. Okay, this is 2, B का is 3, C previous good character in criminal cases, section number 53 के according it is relevant, तो C का हो गया 4. D oral admissions as to the content of the document, it is given under section number 22, that is D का 1. So right answer is A. Which one of the following section of Indian Evidence Act makes relevant opinion as to the existence of the custom? हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? हमने हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ा, सेक्शन नंबर 47। 47A में हमने क्या पढ़ा? हमने सिग्नेचर के बारे में पढ़ा। ओके, सिग्नेचर के बारे में पढ़ा। 48 में वी स्टडीड अबाउट कस्टम्स, 49 में वी स्टडीड अबाउट यूजेज एंड टेनेट्स। ओके, 50 में वी स्टडीड अबाउट रिलेशनशिप, and under 51 we studied about the grounds of the basis of the opinion. So custom से related कौन सा है? It is your section number 48. Character as affecting damage has been discussed in which of the sections? सीधा section based, title based या chapter number based question आते हैं और ये आ चुके हैं पहले UPPCSJ में भी। ओके, सेक्शन 55, 56, 57, 58 ये तीनों सेक्शन तो देखने ही नहीं है, आंख ही बंद कर लेना यहाँ पे, बिकॉज इट डील्स विद अनदर चैप्टर दैट इज फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको आपको प्रूव ही करने की जरूरत नहीं है? सो राइट आंसर विल बी सेक्शन नंबर 55. ओके, by which of the following amendment section number 53A has been inserted? 53A deals with the previous sexual experiences based on the consent. Information Technology Act 2008, Indian Evidence Amendment Act 2002, Criminal Law Amendment Act 2005, or it is 2013. So right answer is 2013. Okay, now we will move on to some very interesting and something which is difficult for students to remember, that is section number 57. Okay, not 56. 56 और 58 तो मैम यूं याद हो जाता है, it is 57 जहां पे हमें दिक्कत होती है. So do not worry, I have made this chart. सेग्रीगेट किया है कुछ वर्ड्स को कलेक्ट करके जिससे कि आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं. पहले चलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जहां हम डील करेंगे
एक जनरल कंसेप्ट जो ये कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। पहला हमने क्या बोला, हमने फर्स्ट सेशन में ये पढ़ा था कि इफ कोर्ट वांट्स, कोर्ट कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे जजमेंट सुना सकता है, प्रोवाइडेड दैट फैक्ट इज रेलेवेंट प्लस ड्यूली प्रूव्ड एज पर सेक्शन नंबर 165 का प्रोविजो। ओके, 165 प्रोविजो क्लियरली सेज इट शुड बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। अगर प्रूव्ड है देन कोर्ट इज गोइंग टू एडमिट इट। बट सेक्शन नंबर 56 टू 58 कहता है कुछ फैक्ट्स हैं जो मैम आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, गो स्टेट इट इनटू द कोर्ट एंड कोर्ट इज गोइंग टू एडमिट इट, कोर्ट इज गोइंग टू कंसीडर और बिलीव दैट। देन व्हाट आर दोस फैक्ट्स, प्लीज टेल मी मैम। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 56 और 58। 57 क्या, 57 बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है जो कि सीधा 56 से कनेक्टेड है। 56 सेज फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा वो फैक्ट्स आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नाउ अनदर क्वेश्चन, मैम विच ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, वो कौन से फैक्ट्स हैं जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा? तो स्टूडेंट्स दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 57। तो 2 सेक्शन बढ़ाने की जरूरत कहाँ थी, 56 में ही हमको ऐड ऑन करके देते, पर नहीं, उन्होंने सेक्शंस को अलग अलग करना ज्यादा अच्छा समझा। एंड एक तो 56 में वो फैक्ट्स जिसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और एक और है सेक्शन नंबर 58 विच सेज फैक्ट्स विच आर एडमिटेड, जो फैक्ट्स पार्टीज ने खुद एडमिट कर दिए उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कौन से फैक्ट्स एडमिट किए जा सकते हैं या कब उन्होंने एडमिट किए होंगे? इफ इट वाज एट द टाइम ऑफ द हियरिंग पार्टीज एग्रीड टू एडमिट, हियरिंग के वक्त ही पार्टीज ने दोनों ने अपनी सहमति से कोई फैक्ट को एडमिट कर लिया, नाउ इट नीड नॉट बी प्रूव्ड, दैट मीन्स टू से now you need not give any evidence for such a fact because it is admitted। जो चीज एडमिट हो गई है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। now court is not going to waste time in taking any such evidence for such fact which has been admitted। point number 2, अगर ये हियरिंग से पहले है, अगर हियरिंग से पहले parties agreed to admit by writing, they have written something, they have written a contract that okay fine we will not admit this fact into the we agree to admit this fact into the court, writing में हो गया ना। अब आप बाद में जब हियरिंग स्टार्ट होगी आप वो राइटिंग में जो कुछ भी लिखा है वो कोर्ट के सामने पेश कीजिए, कोर्ट इज गोइंग टू बिलीव दैट यस यू हैव एडमिटेड एनी पर्टिकुलर फैक्ट। सो एट हियरिंग नो नीड ऑफ राइटिंग, बट बिफोर हियरिंग अगर हुआ है तो उन्होंने एडमिट करना चाहिए बाय राइटिंग। एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू एनी रूल ऑफ प्लीडिंग, या किसी भी रूल ऑफ प्लीडिंग के अंडर कोई फैक्ट हैज बीन डीम्ड टू बी एडमिटेड बाय द पार्टीज, ये माना जाएगा कि हाँ जी आपने वो फैक्ट एडमिट कर लिया अगर आपके प्लीडिंग के रूल्स ऐसी कोई चीज बताते हैं तो। Is this point clear? So this is your section number 58. Now we will move on to section number 57 which says, or which is connected to section number 56 which says कौन से वो फैक्ट्स है जिसको आपको प्रूव ही करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा काम हल्का हो रहा है। तो उन्होंने बोला जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, तो कौन से वो फैक्ट्स है जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा? 57 इज द राइट आंसर। 57 में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं, उसको मैंने कुछ वर्ड्स लेके एक टेबल बनाया है, एक चार्ट बनाया है, जहां पे मैंने पहला वर्ड लिया इंडिया। दीज वर्ड्स आर नॉट मेंशन्ड बट दिस इज हाउ आई एम एबल टू रिमेंबर और आई वुड लाइक माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर। सो फर्स्ट वर्ड लिया मैंने इंडिया। इंडिया से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। अगर उसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट ने ले लिया है, नो नीड टू प्रूव, मतलब पार्टीज के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। फर्स्ट इज ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई लॉज एनफोर्स है, आईपीसी का कोई सेक्शन कोर्ट को बताओगे, कोर्ट मना करेगा क्या? टीपी एक्ट का बताओगे, कॉन्ट्रैक्ट का बताओगे, एसआरए का बताओगे, विल कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट और विल कोर्ट रिफ्यूज टू एडमिट इट? नो, इट विल नॉट एडमिट बिकॉज दैट इज द लॉ दैट इज प्रिवेलिंग और स्टिल इन फोर्स इन इंडिया। इट शुड बी इन फोर्स, नॉट रिपील्ड और अमेंडेड, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ओमिटेड ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी एनफोर्स में है, अभी कमेंसमेंट में है, देन कोर्ट इज गोइंग टू टेक जुडिशियल नोटिस। सेकंड पॉइंट इज टेरिटरी अंडर डोमेन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया में ऐसी कोई टेरिटरी है, कोई भी ऐसी टेरिटरी है जो भी इंडिया के डोमेन में आती है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर आती है, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस। थर्ड इज प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इट। अब यूके से रिलेटेड हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, कुछ 3 पॉइंट्स हैं जहां पे यूके के बारे में मेंशन करके दिया। वेयर द फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक एक्ट पास्ड बाय यूके पार्लियामेंट।
कोई भी ऐसा एक्ट यूके के पार्लियामेंट ने पास किया, सी दिस एक्ट इज वेरी ओल्ड, है ना, काफी टाइम पुराना है, तो उस वक्त यूके में जो लॉस प्रिवेल कर रहे थे उनका इंपॉर्टेंस हमने इंडिया में भी दिखाया और ये बोला कि इंडियन कोर्ट्स आर गोइंग टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दोज लॉज व्हिच आर प्रिवेलिंग और व्हिच आर इन फोर्स इन यूके. Okay, that is the reason it was said that we were ruled by the British law. Okay. Second is proceeding of UK Parliament. एक तो प्रोसीडिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो गई. अच्छा, दीज वर द सेम पॉइंट्स, है ना, एक ही पॉइंट में था. आई ब्रोक दिस पॉइंट इनटू 2 पीसेस और यूके का पार्ट यूके में डाल दिया, इंडिया का पार्ट इंडिया में डाल दिया. तो यूके पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग है, कोर्ट इज गोइंग टू टेक जुडिशियल नोटिस. थर्ड इज ऑल सील्स व्हिच इंडियन इंग्लिश कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस. कोई सील है जहां पे इंग्लिश कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लिया तो इंडिया भी लेगा. क्यों? क्योंकि एक्ट पुराना है. ओके. एंड इसको ड्राफ्ट किसने किया था? जेम्स स्टीफन. एम आई राइट? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स. जेम्स स्टीफन. थर्ड इज वॉर. फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ वॉर विद इंडिया विद इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स. अगर इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ ऐसे कोई भी वॉर के दौरान कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं तो उसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने वाला है. या फिर कोई भी वॉर है इंडिया का दूसरे नेशंस के साथ, वो वॉर कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, या कब उसको टर्मिनेट किया गया है, कब तक वो चला है, उसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने वाला है. मतलब वी नीड नॉट प्रूव एनी सच फैक्ट रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. फोर्थ पॉइंट मैंने नेशन के बेसिस पे यहाँ पे 3 पॉइंट्स डाले हैं, जहां पे पहला है डिवीजन ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडे. अब एक बात बताओ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती, कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत है क्या? फलाना दिन को दिवाली आई थी या हुआ था, साल में इस तारीख को रक्षाबंधन आया था, होली आई थी. डू यू नीड टू प्रूव इट? नो, वी डू नॉट हैव टू प्रूव इट. व्हाई यू हैव टू प्रूव इट? बिकॉज दीज आर द थिंग्स जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने वाला है. ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि भैया इंडिया की और पाकिस्तान की ये बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश की ये है, तो यू नीड नॉट प्रूव. अब आप जाके वहां पे बताओगे थोड़ी कि हाई आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना डिस्टेंस या कौन सी बॉर्डर तक या कौन सी जगह तक पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है. नो, यू नीड नॉट प्रूव. वो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है. अब कोर्ट उसको सिर्फ जुडिशियल नोटिस लेगा. दैट इज दे आर गोइंग टू जस्ट नोट इट डाउन. दैट इज इट. सेकेंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, फ्लैग, टाइटल ऑफ सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया. किसी स्टेट का कोई फ्लैग है, कोई टाइटल है विच हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसको वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं. थर्ड इज रूल ऑफ रोड्स ऑन लैंड एंड सी. लैंड और सी को लेके क्या रूल्स है हमारे इंडिया में या कहीं पर, उसका जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट. ओके, वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं. फिफ्थ पॉइंट इज एसेशन. एसेशन ऑफ व्हाट? एसेशन ऑफ एनी ऑफिस, एसेशन ऑफ ऑफिस, नेम, टाइटल, साइन ऑफ पर्सन फिलिंग द पब्लिक ऑफिस. अगर कोई पब्लिक वैकेंसी आई थी, वहां पे किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट हो गया है, डू यू नीड टू प्रूव दिस? नो, यू नीड नॉट प्रूव दिस. कोर्ट इज गोइंग टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इट. And sixth point is name of the officers of court, advocate, vakil or authorized by the law to appear. Now court cannot deny that you are not a lawyer. If you have your license or the enrollment card, you can show it. यहाँ पे इस चीज को dispute करने की या prove करने की जरूरत नहीं कि prove you are a lawyer. Okay? Now the question that we have is under section 57 1 what of the Indian Evidence Act the court shall take judicial notice of. किसका judicial notice लेने वाला है? All law in force of India including foreign laws, Indian or Asian laws, Indian and British law. अब now tell me one thing, अगर 57 का clause 1 आपको नहीं पता, जैसे हमने यहाँ नहीं लिखा सब क्लॉज कौन सा है कौन सा नहीं है, सॉरी सबसेक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है सबसेक्शन, ओके, देन इन दैट केस हम थोड़ा सा लीगल लॉजिक लगा ले, लीगल लॉजिक लगा ले. फॉरेन लॉ हमने वहां पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ वर्ड यूके पढ़ा है. एशियन लॉ हमने वहां पढ़ा ही नहीं, ब्रिटिश लॉ हमने पढ़ा ही नहीं है. सो गो बाय दीज पॉइंटर्स, दिस विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल कि हमने सिर्फ ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया के बारे में पढ़ा था और वही दे रखा है पॉइंट नंबर या फिर सबसेक्शन 1 में. ओके, in Indian Evidence Act the fact of which judicial notice is to be taken are stated in, the facts of which judicial notice is to be taken are stated in which section? 56, 57, 55 और 58. अगर आपको लगता है 56 से नो स्टूडेंट्स, इट इज रॉन्ग, इट इज 57 बिकॉज 56 ने कुछ और बोला है. 56 said that facts which need not be proved, facts which need not be proved, और कौन से प्रूव नहीं होंगे? जो कि कोर्ट जिसका जुडिशियल नोटिस लेगा,
और वो एग्जैक्टली कहां दे रखे हैं, वो एग्जैक्टली हमें सेक्शन नंबर 57 में दे रखे हैं, ओके, बिकॉज वो जो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है वो हमें सेक्शन नंबर 57 में दे रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, नेशनल फ्लैग ऑफ स्टेट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, ये तो गलत हो गया, स्टीफन्स डाइजेस्ट ऑन क्रिमिनल लॉ और रूल ऑफ रोड on land and in sea. Right answer is rule of road on land and in sea. Okay. Next. Now we will come to oral and documentary evidence. Oral और documentary evidence में अब हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे कि oral evidence क्या होता है. Okay. Oral evidence क्या होता है, that is section number 59 and 60. फिर we are going to study documentary evidence क्या होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे 61 से 98. अच्छा, इसमें भी आगे सेग्रीगेट होगा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस. देन फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी, बिकॉज वी आर स्टडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. अच्छा, जब भी बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता कौन सा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट अंडर द डेफिनेशंस दैट एवरी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड which the court permits, which is produced before the court for the purpose of inspection. इंस्पेक्शन के लिए अगर प्रोड्यूस किया गया है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इट इज सेड टू बी एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है. नाउ डॉक्यूमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर टू थिंग्स, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज योर आईपीसी. सब में बता रखा है हमको, दोनों में बता रखा है, बट दोनों का लास्ट लाइन इज डिफरेंट. डू रिमेंबर दैट थिंग. नाउ वी विल स्टडी कि ओरल एविडेंस एक्चुअली है क्या. अब मैं आपको कुछ बोल रही हूं तो मैं आपको ओरली बोल रही हूं, राइट, ओरली बोल रही हूं. सेक्शन नंबर 60 ये कहता है ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए. डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूं, आप जाके किसी और पर्सन को बता रहे हो, तो वो भी तो ओरल एविडेंस ही हुआ ना, बट मैं उसको हेयर से एविडेंस बोलूंगी. व्हाई? बिकॉज आई एम द थर्ड पर्सन हु हैज कन्वेड एनीथिंग एंड देन यू आर गोइंग इन द कोर्ट एंड स्टेटिंग समथिंग. Why you are considered as hearsay evidence over there? Because you are not stating something directly. आपने ना तो खुद से देखा, ना खुद से सुना, ना खुद के सेंसेस से एक्चुअल चीज को महसूस किया या सेंस किया. This is the reason you are not considered to be a direct one and you will not be considered as oral evidence. You are indirect or you will be considered as hearsay evidence. So, section number 59 ने पहले ये बोला है how to prove the fact. हमें ये बताइए कि फैक्ट्स को कैसे प्रूव करना है. अगर कोई फैक्ट है आप कैसे प्रूव करोगे. मैम हम एविडेंस देंगे ना, कहाँ प्रॉब्लम है. यस, गो फॉर एविडेंस, यू कैन गिव द एविडेंस, बट सेक्शन नंबर 59 सेज ऑलवेज प्रूव द फैक्ट बाय ओरल एविडेंस. मतलब इंपॉर्टेंस किसको दिया यहाँ पे, ओरल एविडेंस को दिया. अभी देखना आगे हम पढ़ेंगे वेयर दे हैव सेड कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करना या कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करना, प्लीज प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी एविडेंस. मतलब कोर्ट हमेशा फर्स्ट रिसोर्स को इंपॉर्टेंस देता है, बेस्ट एविडेंस रूल को इंपॉर्टेंस देता है. दे हैव सेड दैट एविडेंस कैसा होना चाहिए, ओरल होना चाहिए. ठीक है, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. जब बात किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आए तो वहां पे आपको ओरल एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, वहां ये जरूरत नहीं है. देन इन दैट केस वी विल गिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिर वहां पे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे. बाकी जनरल रूल इज दैट ईच एंड एवरी फैक्ट विल बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. ओके, बट व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द ओरल एविडेंस. सो सेक्शन 60 सेज दैट ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब ये हुआ that if fact is such that it could have been seen by somebody, then it should be proved by the fact of that witness who actually saw that. मतलब ये है, मिस्टर ए सेज, अब देखो ठीक है, मिस्टर ए यहाँ पे क्या कहता है, मिस्टर ए यहाँ पे कहता है कि मैंने बी को सी की डेथ कॉज करते हुए देखा. मिस्टर ए सेज दैट आई सॉ बी मर्डरिंग सी. ओके, इसने देखा, ये इसकी आंख है. क्लियर. सो अब ये फैक्ट कौन प्रूव करेगा, अब ये फैक्ट मिस्टर ए प्रूव करेगा जो ये कहता है कि मैंने देखा. तो फैक्ट अगर ऐसा है जो कि देखने योग्य था ए के द्वारा और वो कह रहा है कि उसने देखा है,
तो फिर फैक्ट इस विटनेस के द्वारा ही प्रूव किया जाएगा जिसने कि ये देखा है। एंड फैक्ट इज सच दैट इट कुड हैव बीन हर्ड बाय समबडी। मान लीजिए डी यहाँ एक पर्सन था जिसने अपने कानों से, ओके दिस इज एन ईयर, मान लीजिएगा, ओके, जिसने अपने कान से सी को चिल्लाते हुए सुना, बिकॉज व्हेन बी स्टैब्ड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग एंड स्टार्टेड शाउटिंग कि बचाया जाए उसे। देन इन दैट केस डी ओनली हर्ड हिज वॉइस। तो इन दैट केस यहाँ पे इस फैक्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे? इस फैक्ट को हम उस पर्सन से, उस विटनेस से प्रूव करेंगे हु सेज दैट ही हैज हर्ड। एंड ई एक पर्सन था, ई एक पर्सन था जिसने सिर्फ सेंस किया। अब सेंस मतलब अपने 5 सेंसेस, ओके, नॉट 6 सेंसेस। 5 सेंसेस से अगर उसने कुछ सेंस किया है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज गोइंग थ्रू अ वे, 4-5 दिन हो गए और यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही थी और उसको लगा कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी है, यहाँ पे कोई डेड बॉडी है। सो ही केम इनटू द कोर्ट एंड गेव द एविडेंस बिकॉज ही कुड स्मेल इट। सो ऐसा फैक्ट कौन देगा? बाय दैट पर्सन who says that he has perceived it his by senses। ऐसे नहीं सपनों में मुझे ये पता चला था, नो, वो सिक्स्थ सेंस नहीं लगाना है आपको, साइकोलॉजिकल आपको एविडेंस नहीं देना है। योर एविडेंस हैज टू ऑलवेज बी डायरेक्ट एविडेंस। देन इन दैट केस ई का यहाँ पे एविडेंस रेलेवेंट रहेगा, या फिर हम कहेंगे वो ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आता है। ओके, अब देखो परसीव बाय सेंसेस में क्या हो सकता है। सेंसेस का मतलब अगर आपने टंग से, स्किन से, नोज से, ईयर से कुछ भी सेंस किया है, ओके नाउ, तो ऐसे एविडेंस, ऐसे विटनेसेस प्रूफ करेंगे। एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस। हेयर से भी तो सुन ही रहा है ना मैम, उसने भी तो सुना ही तो है। अगर आपने कुछ बोला है हमको तो हमने भी तो सुना है, बट यू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, और फैक्ट एंड इशू से आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आप क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो, दैट्स व्हाई यू आर कंसिडर्ड एज हेयर से एविडेंस। नो डाउट देयर आर सम exceptions to the hearsay evidence like section number 32, section number 6, section number 33. We will be discussing it later when we discuss your dying declaration. Okay. Now another is documentary evidence. आज हम documentary evidence तक ही करने वाले हैं, section number 90A तक ही करेंगे, but उससे भी important रहेगी हमारी ये कुछ tables जो कि आपको help करेगी कुछ sections को याद करने में, या exactly आपको कैसे सवाल आए तो वहां पे आपको क्या point याद रखना है। Section number 61 to 90A says कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मैम, अंडरस्टूड, बट कितने टाइप के हैं? और मुझे ये तो बताओ मैं कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूं? क्या मैं वहां प्राइमरी एविडेंस दे दूं या शुड आई गिव सेकेंडरी एविडेंस ओवर देयर? सो चैप्टर नंबर 5 में आपके 2 तरीके के एविडेंस है। एक है सेक्शन नंबर 62 के अंडर प्राइमरी एविडेंस, दूसरा हो गया सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, एक लॉजिक लगा के मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सीधा सीधा समझना। प्राइमरी एविडेंस क्या हुआ? आपको मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज योर प्राइमरी एविडेंस, दैट इज योर प्राइमरी एविडेंस। उसी का अगर आपने फोटो कॉपी करा दिया, सेकेंडरी एविडेंस। बस इतना बेसिक अपने दिमाग में याद रखो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, या खुद इंडियन एविडेंस एक्ट ही 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आया है, वैसे ही चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स। जहां पहला है 61 से 66, ये बोलता है हाउ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रूव्ड। कंटेंट, पहले देखो 2 चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 61 टू 66 सेज हाउ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रूव्ड। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो सही है, वो गलत है, वो कैसे प्रूव करेंगे आप। 67 टू 98 जिसमें हमारे प्रिजम्पशंस भी आते हैं, जिसमें हमारे प्रिजम्पशंस भी आते हैं। हाउ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव टू बी जेन्युइन। क्या करेंगे आप ऐसा जिससे कि इन कोर्ट यू कैन प्रूव दैट योर डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। एंड थर्ड इज 91 to 100 which we will deal in next segment, which says how far and to what extent oral evidence is excluded by documentary evidence। किस हद तक आपका ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देंगे हम इंपॉर्टेंस। आई एम गिविंग यू एनी एविडेंस इन द कोर्ट, मैं आपको एविडेंस दे रही हूँ कोर्ट में, लेकिन साथ में कुछ ओरल एविडेंस भी दे रही हूँ। हम एक सेक्शन पढ़ेंगे जहां बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट 91 to 100 कहता है सॉरी मैम, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हो, नाउ योर ओरल एविडेंस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, इज एक्सक्लूडेड।
आप अब ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, वो 91 से 100 में दे रखा है। सेक्शन नंबर 61 विच लेज डाउन अ जनरल रूल कि अगर डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्रूव करना है, यू कैन प्रूव इट आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। ओके, बट सेक्शन नंबर 64 इंपॉर्टेंट रहता है, जो हमेशा कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट ऑलवेज बी डन बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट गिवन अंडर 65, जो कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस का प्रूफ दिया जा सकता है। जनरल रूल 61 कहता है डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्राइमरी से भी प्रूव कर सकते हो, सेकेंडरी से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन 64 ने स्पेसिफिकली कह दिया है फर्स्ट गिव प्राइमरी एविडेंस। हमेशा एवरी फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, बट इन एक्सेप्शनल केसेस जो कि 65 में दे रखा है, उसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। मतलब कैन आई कंक्लूड yes or no, yes or no कमेंट सेक्शन में बताइए, कैन आई कंक्लूड दैट in absence of primary evidence we can give secondary evidence, yes or no? क्योंकि 65 में वही तो है, हमारी ओरिजिनल जब गुम हो जाती है तभी तो हम फोटोकॉपी देते हैं। परफेक्ट। सो 61 प्राइमरी या सेकेंडरी दीजिए। अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। प्राइमरी एविडेंस में बोला है डॉक्यूमेंट को जब आपने खुद प्रोड्यूस कर दिया, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस किस में आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पढ़ रहे हैं बच्चों। ओरल स्टूडेंट्स, ओरल एविडेंस के मैटर में कोई प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होता है। जो मैं बोल रही हूं उसका क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, उसका कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही या तो आपका एविडेंस प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो 62 स्टेट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस, जो कहता है डॉक्यूमेंट को खुद को आपने प्रोड्यूस किया कोर्ट में, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी एविडेंस प्रोवाइडेड that the document is executed in several parts और counter parts। अगर एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो उसका हर पार्ट यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस रहने वाला है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मी एंड अ पर्सन, मैं पर्सन फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ओके, ए एंड बी दो पर्सन थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया। मान लीजिए वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड थे। आज उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि फॉर 6 months ए इज गोइंग टू स्टे एट B's house and give him rent of ₹5,000 every month। 6 महीने का ये एग्रीमेंट था। उसके बाद एक और एग्रीमेंट उन्होंने किया जहां उन्होंने 1 साल का और टेनेंसी एग्रीमेंट बढ़ा दिया है। तो हमने वहां पे सेवरल क्या किए हैं, सेवरल एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो वो सारे एग्रीमेंट जो हमने पार्ट में एग्जीक्यूट किए हैं वो क्या होने वाले हैं, यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस होने वाले। नाउ व्हाट आर द काउंटर पार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द काउंटर पार्ट्स। अब देखो काउंटर पार्ट स्टूडेंट्स दो पार्टीज होगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हियर इज मिस्टर ए एंड हियर इज मिस्टर बी। ए ने एक चेक दिया मिस्टर बी को, यहाँ पे ए ने अपना साइन किया। ओके, नाउ दिस इज अ प्राइमरी एविडेंस फॉर मिस्टर ए, बट नाउ जब ए ने बैंक में ये चेक डिपॉजिट किया तो बैंक ने मिस्टर बी को एक स्लिप दिया, Now when the check has been issued by Mr. A, तो साइन के साथ मिस्टर ए का था, so this is the primary evidence for Mr. A, but this is a counterpart for Mr. B. This is a counterpart for Mr. B, so B can produce this check. When B got the slip from the bank, तो ये slip B के लिए क्या हो गई है, B के लिए क्या हो गई, यहाँ पे primary evidence हो गई, but this is an counterpart for Mr. A. Is it clear to all of you? Okay. Now डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस, दैट इज उसका हर एक पार्ट क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल में ये होगा कि बहुत सारी चीजें आपने एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाई है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक और ए नॉवल बाय एनी ऑथर, इसकी 100 कॉपीज हमने बना दी, तो क्या मैं उसको सेकेंडरी एविडेंस बोलूंगी? नहीं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से एक साथ वो सारी कॉपीज निकली है, सो ईच कॉपी और ईच पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ दैट बुक। प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी नहीं होने वाला है। ओके, कमिंग टू सेक्शन नंबर 63 व्हिच सेज व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। इन्होंने बोला पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट परमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। हर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफाइड कॉपी है, जो कि हमको पब्लिक ऑफिसर से मिलती है, जो हमें सर्टिफाई करके देते हैं कुछ, वो क्या है, सर्टिफाइड कॉपी अगर है वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। सो कैन वी से, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, जजमेंट लाते हैं और जजमेंट का
कॉपीज हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है काफी सारे केसेस में। तो वहां पे जहां पे जज साहब साइन करके देते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी जो आपको कोर्ट से मिली है, दैट फॉल्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। रिमेंबर दिस थिंग, ओके? क्योंकि प्राइमरी तो वो खुद हो गई, जो मेन जजमेंट है वो तो प्राइमरी खुद हो गया, और उसकी जो कॉपीज निकली, और वो भी कौन सी? सर्टिफाइड कॉपीज है, दैट इज द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंड इज कॉपी फ्रॉम ओरिजिनल मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। एक कॉपी थी, एक कह सकते हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट था, उसका आपने कॉपी निकाला किसी मैकेनिकल प्रोसेस से। इसमें क्या हो सकता है? इसमें आएगा आपका फोटो कॉपी। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया या मैंने एक फोटो दी और उसकी फोटो कॉपी निकाली है उन्होंने। अगर मैं बैठी हूं और मेरी 100 कॉपीज एक साथ निकाली गई, दैट विल कम इनटू प्राइमरी एविडेंस। इस पार्ट में आएगा, यूनिफॉर्म प्रोसेस से वो एक साथ बनी है। लेकिन हमारा कोई ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट था, उसकी हमने आगे कॉपी निकाली किसी मैकेनिकल प्रोसेस से, वो आपकी किस में आएगी? सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। तो यहाँ पे आपका फोटो कॉपी आएगा, यहाँ पे आपका बुक आ जाएगा या फोटोग्राफ आ जाएगा, जो बोलता है ना कि 8 फोटो, 32 फोटो, 16 फोटो, वो सब इसमें आता है, क्योंकि वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है। ओके? थर्ड इज कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। यहां पे जब कोई कॉपी बनी है, कोई प्रोसेस यूज नहीं हुआ है, लेकिन उसको हैंड से बनाया गया, इट हैज बीन मेड, और उसको कंपेयर किया गया है, या फिर कंपेयर किया गया है किससे? ओरिजिनल से। फोर्थ पॉइंट इज काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। हमने अभी, आपको याद है, वी हैड डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ चेक। सो मिस्टर ए गेव दिस चेक टू मिस्टर बी। सो ये एग्जीक्यूट किसने किया था? साइन किसने किया था? ए का साइन था। सो द काउंटर पार्ट, सो दिस चेक बिकम्स द काउंटर पार्ट फॉर मिस्टर बी, और इसने ये एग्जीक्यूट नहीं किया था, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस फॉर मिस्टर बी, नॉट फॉर ए। क्योंकि ए ने तो एग्जीक्यूट किया था ना, तो ए ने जब एग्जीक्यूट कर दिया उसके लिए तो प्राइमरी हो गया, और बी को जो स्लिप मिली है बैंक से, वो बी के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गई, और ए के लिए क्या हो गई? काउंटर पार्ट हो गई, बिकॉज ही हैवंट एग्जीक्यूटेड दैट। Okay, so this becomes secondary evidence for B. As for A, slip becomes secondary evidence and check becomes secondary evidence or the counterpart for Mr. B. Okay. Fifth point is oral account of the content of document by the person who has himself seen it. वो person एक document का content अगर देखता है, तो वो वहां पे आके oral evidence दे सकता है। For example, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आए, 2 स्टूडेंट्स ने अपना मार्कशीट दिखाया। ओके, एक बहुत अच्छे नंबर लेके आया, A+ मिला, आउटस्टैंडिंग। दूसरा थोड़ा समझ जाओ, ठीक है? तो आई हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट, आई हैव सीन द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, आई हैव सीन व्हाट ग्रेड्स दो स्टूडेंट्स हैव गॉट और स्कोर्ड। When I have seen that, then in that case, if I am giving on any oral account, क्योंकि मैंने वो देखा है, it will be considered as secondary evidence. तो ओरल एविडेंस देख रहे हो आप, कैसे ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन के हमारा सेकेंडरी एविडेंस बन चुका है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच सेज दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जगह या कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप ओरली भी प्रूव कर सकते हो। वरना जनरल हमको क्या बोल रहा है? जनरल हमको हमारा सेक्शन नंबर 61 ये कहता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट तो आप प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस से ही प्रूव करोगे। बट point number 5 of section number 63 said that when you are giving any documentary evidence, you can give oral evidence in case you have yourself seen it. Okay, moving on to another part, that is section number 64. 61 में हमने पढ़ा कि कंटेंट कैसे प्रूफ करेंगे डॉक्यूमेंट के। मैम 2 तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। 62 says what are primary, 63 says what are secondary. 64 says, ma'am, okay fine, what you read in 61 is general rule, but now come and listen to me. I am telling you that whenever you have to prove any document, now what we are studying is document को prove करना है, not the contents of the document. Listen it very carefully. Now we are studying is not the content of the document, we are studying document itself. डॉक्यूमेंट के अंदर का कंटेंट नहीं, डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है कि फ्रॉड नहीं है, ये एकदम असली है, डॉक्यूमेंट को पेश करना है, देन इन दैट केस प्राइमरी एविडेंस मैम जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेके आइए। एक्सेप्ट 65 में जो सिचुएशन दे रखी है तो आप सेकेंडरी एविडेंस लाइए, अदरवाइज 64 ने बोला प्राइमरी एविडेंस दीजिए। तो एक्सेप्ट 65 मींस 65 ने वो सारे केसेस बताए हैं वेयर वी कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस व्हेन वी डू नॉट हैव प्राइमरी एविडेंस।
या फिर और कुछ सिचुएशन बताइए। हमारे पास यहाँ पे 7 सिचुएशंस है इन विच वी कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस एज पर योर सेक्शन नंबर 65 और 63 को लेके कंफ्यूज मत होना, पहले हमेशा डेफिनेशन आता है। सो सेक्शन नंबर 63 मेंशंस द डेफिनेशंस ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस एंड 65 मेंशन करता है कब हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे। ओके, यहाँ पे पहला सिचुएशन बोला है व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन अ पोजेशन ऑफ द पर्सन। जब मेरा आधार कार्ड या मेरी मार्कशीट ऐसे पर्सन के पोजेशन में है अगेंस्ट whom the document is to be proved, जिसके अगेंस्ट मुझे डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, उसके पोजीशन में है। अब वो क्यों लेके आएगा? वो नहीं लेके आएगा। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, गिव योर फोटोकॉपी। ओके, और इट इज इन द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज आउट ऑफ द रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द कोर्ट प्रोसेस। हिमालय पर्वत पता नहीं कहां चले गए, अब उनको हम बुला ही नहीं सकते हैं कोर्ट में। आई कैन गिव सच secondary evidence in that case. Third is fail to produce after notice under section 66। जिस पर्सन के पोजेशन में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसके पर्सन के पोजेशन में, उसको नोटिस दिया हमने सेक्शन 66 में, एंड वी आस्क दैट पर्सन टू कम टू द कोर्ट एंड प्रोड्यूस दैट प्राइमरी एविडेंस, बट ही रिफ्यूज्ड, फेल हो गया, आया नहीं कोर्ट में। तो इंतजार थोड़ी ना करेंगे, नो प्रॉब्लम मैम, ही इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट, यू गिव योर फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, वी विल मैनेज। बराबर। Now another point under point B is when the existence condition of your original is proved in writing or admitted by the person against whom it is to be sought to be proved। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, और my age is as or is accurate as given in the birth certificate, और if it is challenged by any person, लेकिन वो खुद ही बाद में राइटिंग में ये चीज को एडमिट कर दे, then in that case we need not give the primary evidence। वहां पे हम secondary evidence दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I am proving my certificate against any person now, and that person himself has proved in writing or admitted in writing the existence of the condition कि हाँ ये चीज जो है वो exist है, that is true। Then in that case I need not prove the primary evidence, I can merely prove secondary evidence, कोई जरूरत नहीं है। For example see, यहाँ क्या हो सकता है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी से हर महीने 5000 रुपीज लेंगे, बिकॉज वो मिस्टर बी को यहाँ पे अपने घर में टेनेंट की तरह रखते हैं। सो मिस्टर बी इज डिनाइंग कि वो वहां पे टेनेंट है, मिस्टर बी इज डिनाइंग कि वो वहां पे टेनेंट है, बट लेटर ऑन व्हाट मिस्टर बी सेड कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ही हैड एडमिटेड दिस थिंग इनटू द राइटिंग, देन मिस्टर ए को ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट whom it was sought to be proved। बी के अगेंस्ट प्रूव करना था ना, नो, नाउ वी नीड नॉट प्रूव इट बिकॉज बी हैड एक्सेप्टेड इट। बी हैड accepted what the existence and the condition of that primary evidence original का। okay, C point is document is a public document as per section 74। 73 किसकी बात करता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, सॉरी 74 किसकी बात करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और 75 किसकी बात करता है, हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की। तो 74 में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं, अब उसके लिए आपको प्राइमरी देने की जरूरत नहीं है, यू कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस, चलेगा। डी इज नॉट इजीली मूवेबल, प्राइमरी एविडेंस इतना ज्यादा बल्कि है दैट इट कैन नॉट बी मूव्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू एनी हॉस्पिटल एंड वहां पे हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर पर्सन का बर्थ किस डेट को हुआ था, कौन से डॉक्टर के प्रेजेंस में उस चाइल्ड का बर्थ हुआ है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट कैरी दैट कंप्लीट रजिस्टर टू द हॉस्पिटल। तो ठीक है, आप उसका सेकेंडरी ले आइए, सिर्फ उस पेज का, सिर्फ उतने पेज का जिसमें वो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, आप उसका सेकेंडरी दे सकते हैं, इट विल बी एडमिसिबल। ई इज दैट ओरिजिनल इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जब ओरिजिनली नहीं है हमारा आधार कार्ड या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, जब ओरिजिनली नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस। ई सेज when the original has too many accounts, जब ओरिजिनल के ही इतने सारे अकाउंट्स हैं, तो आप उसका क्या कीजिए, सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए, किसी एक पार्ट का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट सेक्शन नंबर 66 says that whenever you are giving secondary evidence, then kindly, or when the court requires the secondary evidence to be produced, then in that case a notice has to be given to produce such evidence. No secondary evidence will be produced without the notice, but it says that no notice is required। नोटिस की जरूरत ही नहीं है किसी पार्टी को कि आप आइए और सेकेंडरी एविडेंस दीजिए। कौन से केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं है, पहला, when the document to be produced is itself notice।
जब खुद नोटिस ही एक डॉक्यूमेंट है तो उस केस में हमें जिस पर्सन के पास वो नोटिस है उसे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, दैट कम एंड गिव सेकेंडरी एविडेंस फॉर दैट नोटिस। सेकेंड पॉइंट इज एडवर्स पार्टी नोज इट दैट ही हैव टू प्रोड्यूस। आपको पता है, आप इतने बुद्धू नहीं हो कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको नोटिस या ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करनी है। यू आर एजुकेटेड एनफ, बट if you are not proving if you are not giving it into the court, no notice will be given to you for secondary evidence। फिर इस केस में देखो कोर्ट जो है ना वो एडवर्स डिसीजन दे देता है उस ऑपोजिट पार्टी के who is not producing such documents। okay, थर्ड इज when the adverse party, that is the opposite party जिससे हम secondary evidence डिमांड कर रहे हैं, obtained the possession of original by fraud or force। जब एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल का फ्रॉड या फोर्स से पोजीशन ले लिया है, then जो विक्टिम पार्टी है they can produce the secondary evidence। okay, sorry, in that case secondary evidence तो देंगे, listen to me, secondary evidence तो देंगे, लेकिन यहाँ पे एडवर्स पार्टी को हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, no notice is required। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है कोर्ट में। जब आप प्रेजेंट हो कोर्ट में देन नो नीड टू गिव यू नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। फिफ्थ पॉइंट इज एडवर्स पार्टी एडमिट्स द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट। बोल दिया कि डॉक्यूमेंट लॉस्ट है तो अब नोटिस क्यों देना है, बेचारे के पास है ही नहीं तो प्रोड्यूस क्या करेगा। लास्ट इज पर्सन हैविंग डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्टेड टू कोर्ट प्रोसेस। मिल ही नहीं रहे, पता ही नहीं है तो नोटिस दोगे किसको, आप किसके घर जाएगा नोटिस। So that is your section number 66 which gives you rules as to the notice to produce secondary evidence. Now we will deal with section number 67 to 73. 67 to 73 because यहाँ पे हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है जिसे हमें प्रूफ करना है, बट हाउ वी विल प्रूफ एंड which documents are to be proved, ये बताइए कौन से डॉक्यूमेंट प्रूफ करने और कैसे प्रूफ करना है। ये 67 से लेके 73 तक हमें दे रखा है। From 74, 75 we will study public document, private document, and from section number 79 onwards we are going to discuss with the presumptions। okay, now see 67 बोलता है if you have to give the proof of the document, अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में जिसमें आपको प्रूफ देना है that the document is in sign and handwriting of the person alleged to have signed and written the document। अगर मेरे द्वारा लिखा हुआ आप कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर रहे हैं और ये प्रूफ देना है कि yes this document or these notes have been framed by Shivani ma'am only, then how will you prove student? You have to prove this in my handwriting। और मेरी हैंडराइटिंग को आप कैसे प्रूफ करोगे? आप या तो एक्सपर्ट ओपिनियन को ला सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो। यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन कौन होगा? जो मेरी हैंडराइटिंग से एक्विटेंट है। कौन एक्विटेंट है? यू स्टूडेंट्स आर एक्विटेंट। या तो आप स्टूडेंट्स या मेरी टीम या हमारे कोऑर्डिनेटर हु नोज कि मैम की राइटिंग कैसी है, वो आके प्रूफ कर सकते हैं। या फिर यू कैन कंपेयर इट विद माई अदर नोट्स, ओके, जो मैं जनरली लिखती हूँ उससे कंपेयर किया जा सकता है, बट प्रूफ मेरी राइटिंग में ही आप उसको करेंगे। नेक्स्ट इज अगर वी हैव टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट कि उस पे जो डॉक्यूमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो शिवानी मैम का है, देन यू हैव टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ दैट सब्सक्राइबर। देन इन कोर्ट यू हैव टू प्रूव कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना ये शिवानी मैम का है। सब्सक्राइबर कौन है यहाँ पे? सब्सक्राइबर मैं हूं। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे सब्सक्राइबर मैं हूं। ओके, 68 says when you have to prove that a particular document was executed, okay, execution of document required by law to be attested। जब आपको ऐसे डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन प्रूफ करना है जो कि कोर्ट के द्वारा रिक्वायर्ड है कि उससे अटेस्टेड होना चाहिए। देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल के लिए जाते हैं, लीज के लिए जाते हैं, वेयर कोर्ट सेज दैट इट नीड्स आइदर टू बी सेल्फ अटेस्टेड या फिर आप विटनेसेस से अटेस्ट करवा के लेके आइए। ओके, अटेस्टेड मींस विटनेसेस आर कमिंग टू अटेस्ट एंड सेल्फ अटेस्टेड मींस जहां पे आप खुद साइन कर रहे हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन कि हाँ जी ऐसा सेल हुआ था, देन इन दैट केस हाउ विल यू प्रूफ? कैसे प्रूफ करोगे? अरे वो विटनेस इसीलिए तो आते हैं, इसीलिए तो उनसे अटेस्ट करवाते हैं हम। देन इट हैज टू बी प्रूव at least by one witness called to prove its execution। फिर वहां पे हम गवाहों को लेके आएंगे, कोर्ट में हाजिर करेंगे and they are going to say yes ऐसा सेल हुआ था। एक्सेप्शन क्या है इसका? कब आपको इस एक विटनेस को भी कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था और उस डॉक्यूमेंट को जहां पे आपने अटेस्ट करवाया था विटनेसेस से, अपने दो जान पहचान के दोस्तों को बुलाया था,
इट सेज व्हेन द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आपने वो सेल डीड जो कि अटेस्ट करवाई थी विटनेसेस से, उसको रजिस्टर करवा दिया, अब आपको अटेस्टेड विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है. व्हाई टू वेस्ट द टाइम व्हेन यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट. इसीलिए कहते हैं every document that you sign or you execute must be registered. बिना रजिस्ट्रेशन के आपको प्रॉब्लम फेस होती है. कैसे प्रॉब्लम फेस होती है? Because if you have not got your any document registered and if it comes into issue or any question mark is put on the validity or the execution of the document, then you need to rely on the attesting witnesses. And what if attesting witness refuse to come to the court? In that case, if your document is registered, you need not run after the attesting witnesses. आप खुद जाइए कोर्ट में, आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, sufficient enough. फिर विटनेसेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमाना ऐसा है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते. ओके, लेकिन इस एक्सेप्शन टू का भी एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मीन्स जनरल रूल. एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मीन्स जनरल रूल. इट सेज कि इफ विल है, अगर कोई पर्सन ने विल बनाई है तो वो क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय विटनेसेस. उस केस में आपको एक विटनेस को लाने की जरूरत पड़ेगी एंड उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. मतलब ये एक्सेप्शन किसका है? ऊपर वाले का एक्सेप्शन है. विल हैज टू बी रजिस्टर्ड एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो जब आप उसको रजिस्टर करवा रहे हो तो फिर मैम कहां जरूरत है? वो तो आ गया ना इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, फिर कहां जरूरत है एक विटनेस की? बट नहीं, इसमें ये बोल दिया है कि इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय वन अटेस्टिंग विटनेसेस इवन इफ इट वाज रजिस्टर्ड, बिकॉज will comes into force only after the death of the person who have executed it. This is the reason वहां attesting witnesses को इसलिए बुलाया जाता है, to make sure and to find it out whether the executant of that will had executed that will with free will. फ्री विल मतलब अपने वॉलंटरी किया है, विदाउट एनी फोर्स, कोर्जन, थ्रेट, इंड्यूसमेंट. ओके. 69 says when no attesting witness is found, डॉक्यूमेंट था, अटेस्ट करवाया, मैंने अपने दो बहुत ही भरोसेमंद साथियों को बुलाया, एक को ऑफिस से बुलाया, एक को अपने कॉलेज से बुलाया, साइन करवाया, उनसे अटेस्ट करवाया. बट नाउ व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चनड, व्हेन इट इज चैलेंज्ड, अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिले, धोखेबाज निकल गए, अब क्या करें? देन इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव बाय attestation of one attesting witness in his writing. अब यहां पे आपको attesting witness की writing proof करनी है. What you have to prove? You have to prove the writing, handwriting of that attesting witness. Attesting witness मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है ही नहीं धरती पे, तो उसकी writing को proof कीजिए. writing को कैसे proof करेंगे? By the person who is acquainted with the writing of that person. और second plus एक और चीज proof करनी है, sign of executant is in his handwriting. तो यहाँ पे मैंने एग्रीमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल शिवानी मैम एग्रीड मेड एनी कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ए. तो एग्जीक्यूटेंट कौन हुए? पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट कौन हुए? और पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन हुए? शिवानी मैम एंड ए. तो दोनों में से किसी भी एग्जीक्यूटेंट का आप हैंडराइटिंग प्रूव कर दीजिए, उसकी हैंडराइटिंग में उसने साइन किया है. इफ यू प्रूव दैट प्लस इफ यू प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस, तो यहाँ पे what will be said to be done, that the document has been duly executed. So you need to understand the situation because now you are, since you all are lawyers, तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार विटनेस भग जाता है, नहीं आता है, तो क्या? या फिर विटनेस ही मना कर दे तो फिर क्या? तो विटनेस की हैंडराइटिंग प्रूफ करेंगे. ऐसा नहीं है कि विटनेस मना कर सकता है, नहीं कर सकता. इसीलिए कहीं पर जब विटनेस भी बनना होता है, सोच समझ के बने आप. ओके. सेक्शन नंबर 70 says when attesting witness admits the execution himself, हमारा जो दोस्त जिससे हमने गवाही करवाई थी, जिससे सिग्नेचर करवाया था इस डॉक्यूमेंट पे, उसने खुद कोर्ट में आके एडमिट कर दिया, हाँ जी दिस डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड, दिस इज माय सिग्नेचर, दिस इज शिवानी मैम सिग्नेचर. नाउ व्हाट? इट इज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. इट इज सफिशिएंट प्रूफ एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एज टू द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एज टू द लीगैलिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. क्लियर? हमेशा हर मामले में विटनेस धोखेबाज नहीं होता है, या एग्जीक्यूटेड विटनेस हमेशा मना नहीं करेगा, वो एडमिट भी करता है. ओके. एंड व्हाट इफ ही डिनाइज एग्जीक्यूशन? सेकंड केस डिनाई भी कर सकता है, भरोसेमंद नहीं था, है ना. इन दैट केस प्रूव द एग्जीक्यूशन बाय अदर एविडेंसेस. देन इन दैट केस यू नीड टू फाइंड अदर एविडेंसेस जिससे आप प्रूव कर सकते हो. अदर एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं? आपका कोई सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है, या फिर अगर आपने
देखो रजिस्टर है तब तो फिर आपको विटनेसेस की वहां पे जरूरत ही नहीं है, अटेस्ट करवाने की, अटेस्टिंग विटनेसेस की भी जरूरत नहीं है, यू नीड टू प्रूव अदर एविडेंसेस। 72 says when not required by law to be attested, अगर हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट देखे ना, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट देखे, वहां पे कुछ सेक्शन मेंशन है जो कि कहता है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आपका लॉ ये कहता है कि दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, नो अटेस्टिंग विटनेस इज रिक्वायर्ड टू अटेस्ट दैट, मियर सेल्फ अटेस्टेशन इज सफिशिएंट, देन इन दैट केस हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव? इट मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। आप ऐसे ही प्रूव करोगे जैसे कि वो कभी अटेस्टेड था ही नहीं या वो अनअटेस्टेड ही है। ओके 73 सेज वेदर, जहां पे सवाल ये है वेयर साइन राइटिंग सील is of a person by whom it purports to have been written, कोई डॉक्यूमेंट है उस पे मेरा साइन है, ठीक है, उस पे मेरा साइन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू द ओरिजिनल सिग्नेचर ओवर हियर, अगर उस पे मेरा कोई साइन है, देन इन दैट केस इफ द क्वेश्चन इन द कोर्ट इज वेदर दिस साइन बिलोंग्स टू शिवानी मैम और नॉट, मैम का सिग्नेचर है या नहीं है, देन यू कैन कंपेयर इट विद दैट साइन राइटिंग और सिग्नेचर विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज नॉट इन क्वेश्चन, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे हम देखो एग्जीक्यूटेंट का सिग्नेचर में प्रूफ कर रहे थे, यहाँ पे हमारी हैंडराइटिंग को प्रूफ कर रहे थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि वो साइन राइटिंग या सील क्वेश्चन में है, तो वहां पे यू कैन कंपेयर इट विद माई राइटिंग जो कि ऑलरेडी पहले प्रूव्ड है, वो क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए जिसको आप कंपेयर करके प्रूफ कर रहे हो। 73A सेज वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, कोई डिजिटल सिग्नेचर अगर मैंने किया है उसका वेरिफिकेशन अगर आपको प्रूफ करना है कि यस दिस इज अ वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर, कोई फ्रॉड नहीं है, हाउ विल यू प्रूव इट? इट विल बी प्रूव्ड बाय कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी to produce that digital signature certificate, or there is one more option, that is if the person is authorized to give any application to the public officer to get the keys, key होता है, okay, उससे प्रूफ किया जा सकता है कि that particular digital signature belongs to this person, तो वो भी किया जा सकता है। okay, now let's come to the questions, that is first, all facts except the content of document may be proved, कैसे प्रूव किया जा सकता है हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को? हमने बोला सारे फैक्ट्स को मैम ओरल एविडेंस से ही प्रोड्यूस करेंगे, ऑल एविडेंस all facts except all facts shall be proved by oral evidence except the contents of the documents. So ये आपका जनरल रूल पूछ रहा है, that is प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करेंगे, सेकेंडरी से, ओरल से या सर्कमस्टेंशियल से। yes, am I right in marking option number C as the right answer? ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर, बिकॉज हमें फैक्ट्स को प्रूव करने की बात कर रहा है, हमें डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की बात नहीं कर रहा है जो हम यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे, हमें फैक्ट्स को प्रूव करने की बात कर रहा है, तो वहां पे हम ओरल एविडेंस से ही प्रूव करेंगे, और अगर ओरल एविडेंस नहीं है तो फिर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देंगे। इज इट क्लियर? ओके, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन नंबर 59 of Indian Evidence Act can be proved by oral evidence, cannot be proved by oral evidence, may or may not be proved by oral evidence, or can be proved only by oral evidence under the order of the court. So right answer here will be cannot be proved by the oral evidence. But students see, इन्होंने section number 59 बोला और इन्होंने पूछा है content of document. सेक्शन नंबर 59 दे सेड अगर फैक्ट्स को प्रूव करना है ओरल एविडेंस दीजिए, एक्सेप्ट कब आपको ओरल एविडेंस नहीं देना है? जब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो दैट मींस इनका कहने का मतलब ये है दैट ओरल एविडेंस विल नॉट बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, और the content of the document will not be proved by the oral evidence. So the content of document will not be proved by oral evidence का जो ऑप्शन नंबर बी है that is right. Oral evidence under number section 60 must be direct, indirect, circumstantial or may be presumed by the court. As per section number 60 हमने क्या पढ़ा है? That it should be direct. If any person says that he saw any fact, then it must be proved by the witness, by the fact of the witness who says that he saw it. If he says that he has seen it, if he says that he had heard anything, that it must be proved with the fact of by the witness who says that he had heard. And अगर कोई कहता है कि उसने कुछ परसीव किया है अपने सेंसेस से, तो वो ही पर्सन का हम विटनेस दिलवाएंगे या विटनेस के फॉर्म में बुलाएंगे जिसने उसको परसीव किया है। H says to Y that
H says that Y told him that A killed B. H क्या बोल रहा है? H says that Y ने उसको बताया कि A ने B का मर्डर किया. Now you tell me, क्या इसने डायरेक्टली देखा, क्या इसने सुना, या क्या इसने परसीव किया as per your section number 660? No. So यहाँ पे क्या होगा? Hearsay evidence होगा. Okay? Which is not the main principle that underlines the law of evidence. हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था that there are 3 principles for your Indian Evidence Act. The first is the best evidence must be given in all cases. Absolutely, this is the basic fundamental principle. Second is evidence must be confined to the matter and issue. Yes, fact and issue से ही related आप evidence देंगे. Otherwise, do not waste the time of the court. The time of the court is very precious. Third is hearsay evidence must not be admitted. Hearsay evidence must not be admitted. This is also the general rule. And third is hearsay evidence must be admitted. This is not the general rule. Hearsay evidence कभी भी कोर्ट में admissible नहीं होता है. Only in exceptional cases it can be admitted. Okay. Next, if X is charged with Y's murder, which of the following will be hearsay evidence? X ने Y का murder किया, finish कर दिया इसको. Then in that case, Z in his evidence state that I saw X stabbing with the knife. Z आया, Z ने बोला हाँ जी मैंने इसको देखा था, ये Y की डेथ कॉज कर रहा था. So this is what, this is direct as per your section number 60. Point B, evidence of A that Z told me that he had seen X stabbing Y. अब यहाँ पे A बोलता है कि मैंने ये सुना, मुझे Z ने ये बताया कि X ने Y को स्टैब किया है. Then in that case hearsay evidence कौन सा होगा? B will be the hearsay evidence because ये तो direct हो गया ना. Saw, seen, and this is told by the third person stranger. So B will be the right answer as to your hearsay evidence. Now we will come on to the last segment of the session, that is documents, and उसमें पढ़ेंगे public document and private document. Public document और private document कौन कौन से होते हैं and कब हमें public document produce करने की जरूरत है या कैसे proof करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ने वाले presumptions. See students, public document मतलब कोई भी public उसको access कर सकती है, मतलब RTI लग सकता है. क्या लग सकता है? RTI लग सकता है. Section number 74 says any document which forms act or record of 3 things. अगर sovereign authority से related वो record है, sovereign authority, official bodies or tribunals, third is public officers, legislature, judicial, executive और foreign country. अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो कि आपके पब्लिक ऑफिसर्स ने निकाला है, कोई नोटिस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई सूचना जारी की जा सकती है, लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट निकाला है, कोई ऑर्डिनेंस निकाला है प्रेसिडेंट ने, या फिर कोई भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में उन्होंने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट निकाला है, वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 सेज पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स. प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का अगर पब्लिक रिकॉर्ड बना रखा है हमने कोई मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, सो दैट अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सके और गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रखे. फॉर एग्जांपल किसी एक गांव में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों का मार्कशीट में कितना नंबर आया, वेदर दे फेल्ड, वेदर दे हैव सक्सीडेड, तो उनका क्या रिजल्ट्स वगैरह, वो उनका खुद का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है. बट अगर उन सब का हम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट विल fall into public document. Okay, and what are private documents? Apart from whatever is left, apart from your public document, बाकी सब private document में आ जाते हैं. All documents other than public documents private हो जाएंगे. Now section number, okay, this is 76 not 75. Okay, certified copies of public document. मुझे कोई public document चाहिए, मुझे मन मर्जी कर गई है ना कि मुझे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है, या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है, या मैं आरटीआई फाइल कर रही हूँ, आई वांट टू नो अबाउट सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड और सर्टेन रेन्यूमरेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो उस केस में मैं यहाँ पे अगर सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहती तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? आई सिंपली हैव टू गो टू दैट पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है. आई कैन नॉट गो एनीवेयर. ऐसे किसी पब्लिक ऑफिसर से नहीं मांग सकती ना मैं कि बताइए
हमारे राज्य सरकार ने यहाँ पे कितना बीघा जमीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए अलॉट कर दी है, आई कैन नॉट गो एंड आस्क एनीवन। इन दैट केस व्हाट, इन दैट केस पब्लिक ऑफिसर के पास, जिसके पास कस्टडी है, आई विल गो टू दैट पर्सन एंड ही शैल, मींस इट इज मैंडेटरी ऑन हिज पार्ट, he cannot deny, it is not his discretion to give me, he shall give me the copy। किसको देगा? to that person who has right to inspect on demand। I should have right to demand it or inspect it, but when? only when I pay the fees। RTA में कितना रुपए लगता है? 10 रुपए लगते हैं। you should be entitled for that thing। only in that case the public officer is going to give you the certified copies। along with that he has to make sure that on such copy the date is mentioned, the date on which he had issued that certified copy to you। certified at the foot, foot पे क्या certify किया जाएगा? name, title, seal of the public officer। जो पब्लिक ऑफिसर कौन सी कैपेसिटी में है, क्या नाम है, डेजिग्नेशन है, वो सब मेंशन होगा। एंड बिलो दैट ही इज गोइंग टू मेंशन दैट दिस पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी इज द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, now we will come on to certain presumptions which deals from section number 75 to 98। अब ये क्या कहता है? it says that कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। another column states that what kind of presumption will it be? is it mandatory on the part of the court to presume it, or is it discretionary? if it is mandatory then it will be may presume, if it is mandatory it will be shall presume, and if it is discretionary it will be may presume। but presumption, एक डॉक्यूमेंट का presumption तो ले लिया, लेकिन उसमें presume क्या करना है कोर्ट ने? what court is exactly going to presume? अच्छा स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर वन थिंग, 2000 का अमेंडमेंट अच्छे से याद रखना है। digital signature word has been substituted by electronic signature, and another very important point कि 2000 के amendment से क्या क्या चीजें insert हुई है, this point needs to be kept into mind। okay, section 79 says जब कोर्ट को कोई presumption बनानी है as to the genuineness of the certified copies of central government or the state government, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सर्टिफाइड कॉपीज दी, फॉर एग्जांपल हमारा 10th बोर्ड का हमें मार्कशीट मिला, सर्टिफाइड कॉपी होती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है अगर आप सीबीएसई बोर्ड किए हो। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी ऑन द पार्ट, see wherever it is shall presume I have written it with a red marker, and wherever it is may presume I have written it with green marker। okay, so it is obligatory on the part of the court that they have to presume that the document is genuine। हमारी मार्कशीट जेन्युइन है, ये सत्य है कि हम इतना इतना परसेंटेज स्कूल में स्कोर किए हैं। प्रोवाइडेड एग्जीक्यूशन इज एज पर लॉ, द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट वाज एज पर द लॉ, इट वाज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय हाउ मेनी विटनेसेस, अगर वो मेंशन्ड है, कंप्लाई किया है, ओनली देन दैट प्रिजम्पशन विल बी मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ कोर्ट। इफ साइंड बाय द ऑफिसर then it will be presumed that the officer held that character which he claims। अगर उस पे हमारे पर्टिकुलर ऑफिसर का, बोर्ड ऑफिसर का अगर सिग्नेचर है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जब उन्होंने वो साइन किया था he was holding that position जो कि वो क्लेम करते हैं। सेक्शन नंबर 80 says when the document produced as record of evidence given in judicial proceeding, document produced as record of evidence is given in judicial proceeding। for example कोई डॉक्यूमेंट है जो हमें जुडिशियल प्रोसीडिंग में देना है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इट टू बी रिकॉर्डेड एज एविडेंस, एविडेंस रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एविडेंस रिकॉर्ड हो, इस वजह से हम वो देना चाहते हैं। देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन, एंड जो भी उसमें स्टेटमेंट लिखा है, जो भी उसमें स्टेटमेंट लिखा है इट इज ट्रू। ये ध्यान रखना, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई थी उस दौरान ऐसा कोई डॉक्यूमेंट निकला है, उस दौरान वहां से कोई डॉक्यूमेंट फ्रेम किया गया है, डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगा कि वो जेन्युइन है, वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने कन्फेशन दिया, अगर किसी पर्सन ने वहां पे कन्फेशन दिया, कन्फेशन के बेसिस पे उसका कन्विक्शन हो गया, नाउ जो कन्फेशन दिया है दैट डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड और शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू। तो जब भी अगली बार ऐसा कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट इट इज ट्रू, एंड जो उस पे कन्फेशन था वॉलंटरी था, वैलिड था, एंड इट वाज ड्यूली टेकन, मतलब सेक्शन 164 का प्रोसीजर वाज फॉलोड। सेक्शन 81 सेज दैट एनी गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ एनी पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड कोर्ट ने प्रिजम्पशन लेनी है, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम
that the Gazette newspaper or that private act is genuine. वो genuine है, कुछ भी उसमें fraudulent नहीं है, that is accurate. If as per section number 81 court has to take presumption as to Gazette in an electronic form, जहां पर भी A दिख जाता है ना, मतलब आप मान के चलना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं. ओके, इट सेज जो प्रिजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बनानी है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन. इट इज जेन्युइन. अनदर इज 82. 85 में देखो आपको बहुत सारे सबसेक्शंस मिलने वाले हैं या सब पार्ट्स मिलने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे आगे. 82 says when the court has to frame any presumption as to document admissible in England without proof of sign and signature, seal and signature, ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंग्लैंड में एडमिसिबल है लेकिन उस पर साइन और सील नहीं है, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो साइन सील क्या है विदाउट द प्रूफ ऑफ साइन एंड सील, कोर्ट ये मानेगा दैट इट इज जेन्युइन. एंड जिन पर्सन ने उसको साइन किया है या सील लगाई है, ही हेल्ड दैट पोजीशन जब उसने वो साइन या सील किया है. ओके, सेक्शन 83 सेज अगर कोई मैप या प्लान which has been framed by the authority of central government or state government, then in that case what, कई बार हम मैप लेके आते हैं ना इंडिया का, कोर्ट हैज टू मेक अ प्रिजम्पशन एज टू दैट, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज एक्यूरेट. सही है, कोई गलती नहीं है, बराबर है, और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कि बॉर्डर इधर उधर बनाया है या आपने कुछ एडिशनल ऐड कर दिया, दैट विल नॉट बी प्रिज्यूम. एक्यूरेसी विल बी प्रिज्यूम. सेक्शन 84 सेज दैट कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन इन बुक. कोई बुक है उसमें बहुत सारे लॉज हमने डाल रखे हैं या डिसीजंस के बारे में. फॉर एग्जांपल वी सी दैट वी हैव बेरेक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बेरेक्ट, और इफ देयर इज एनी बुक, जो हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, किसी की भी अगर हमारे पास बुक है जिसमें लॉ के बारे में दे रखा है, बहुत इंटरप्रिटेशन किया है, जजमेंट्स के बारे में दे रखा है, एंड कोर्ट हैज टू फ्रेम एन ओपिनियन कि इसमें जो चीज है वो सही है कि नहीं है, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम. व्हाट शैल प्रिज्यूम? जेन्युइननेस ऑफ द बुक, दैट दिस बुक इज जेन्युइन, एंड जो उसमें प्रिंटिंग की डेट दे रखी है, जो उसमें पब्लिशमेंट की डेट दे रखी है, दैट हैज बीन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज इट हैज ड्यूली गॉट द कंसेंट और द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर हुआ है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हुआ. अगर ऐसे ही किसी ने पब्लिकेशन निकाल दिया, पेपर छाप दिए, है ना, कि ये इतने सारे पेपर्स हैं, आप ले लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी पब्लिकेशन निकाल दिया, it court will not make any presumption regarding that because it has not received the authority from the government. गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर थोड़ी ना मैं भी कल को अपना कोई भी XYZ LW कुछ भी ऐसा पब्लिकेशन निकाल दूं, ऐसे नहीं चलता है. कोर्ट विल नॉट प्रिज्यूम इट. ओके, और वैलिड एक प्रिजम्पशन नहीं ले सकते कोर्ट उस पे. सेक्शन नंबर 85 सेज पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी where one person gives the power to other person to take decision regarding his property or regarding any particular thing. Okay, remember this thing that there can be different types of power of attorney. Okay, special, absolute, particular. In that case the extent of right may vary. तो यहाँ पे अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के रिलेटेड कोर्ट ने प्रिजम्पशन बनानी है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम. व्हाट शैल इट प्रिज्यूम? दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय whom? बाय नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मैजिस्ट्रेट. कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने एग्जीक्यूट की है ये कैसी है? ऑथेंटिकेटेड. देखो जब भी हम शैल प्रिज्यूम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिकॉल सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4 मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम इन कंक्लूसिव प्रूफ. मे शैल प्रिज्यूम में क्या होगा? दैट इज कोर्ट विल प्रिज्यूम इट टू बी वैलिड, and if court wants it can further allow for any evidence unless it is disproved. Unless it is disproved, court will presume it to be valid, genuine, authenticated. May presume हो जाता it would have been the discretion of the court. The court could have asked for any other further evidences. लेकिन अगर shall presume की बात कर दियो तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन लेगा. कोर्ट बस अपना डिस्क्रिप्शन या अपना एक मत मान के बैठ चुके हैं कि दिस इज द फाइनल थिंग. इट इज ओनली अप टू द पार्टीज. इफ दे वांट टू डिस्प्रूव इट. ओके. Section number 85 A, B, C, they were added by, inserted by amendment 2000. बहुत अच्छे से याद रखना. 2009 से digital signature was replaced by the word electronic signature. 85A says that if there is any electronic agreement,
presumption has to be taken as to any electronic agreement, then court shall presume. What shall court presume? देखो electronic agreement भी होते हैं, है ना. For example, if there are people who are doing work from home, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाहर देश विदेश की कंपनी है, इंडिया में कोई बैठा है, तो वो एग्रीमेंट कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट करेगा. उसके पास एक पीडीएफ आएगा या फिर एक सॉफ्टवेयर से उसको एग्रीमेंट दिया जाएगा. ही इज गोइंग टू साइन ऑन दैट एग्रीमेंट एंड गिव बैक और मेल दैट एग्रीमेंट बैक टू द कंसर्न कंपनी, जहां पे उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. देन अगर यहाँ पे प्रिजम्पशन बनानी है तो क्या प्रिजम्पशन होगी? कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय द पार्टीज have been concluded by affixing the electronic signature. That means वो जो electronic signature है वो parties ने खुद ने intentionally वहां sign किया है and the agreement has been concluded by the parties. ये नहीं मानेंगे कि नहीं ये तो आपकी साइन ही नहीं है. It will be concluded that yes it is your signature. You know why? जब भी हम electronic agreement की बात करते हैं ना, parties generally दूर होती हैं, तो वहां पे fraud, कोई फोर्स या कोर्जन की उम्मीद या अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम माना जाता है. दिस इज द रीजन कोर्ट सीधा ये मानेगा दैट यस यू पीपल हैव अफिक्स्ड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन दैट. 85B सेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों का यहाँ पे प्रिजम्पशन लेना है. ऊपर देखना ए फॉर एग्रीमेंट. अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड और सिग्नेचर की बात कर रहे हैं. अगर कोई सिग्नेचर है उससे रिलेटेड कोर्ट ने प्रिजम्पशन लेनी है. यहाँ पे भी शैल प्रिज्यूम होगा दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आप दे रहे हैं दैट इज नॉट ऑल्टर्ड, उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं किया है. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर आपको प्रूफ करना है वेदर शिवानी मैम्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ट्रू और नॉट, देन it will be presumed that is it has been affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record. yes ma'am, ये आपका साइन है, आपने खुद साइन किया है एंड यहाँ पे आपका इंटेंशन क्लियर था दैट यू वांटेड टू अप्रूव और साइन दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आपने खुद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर साइन करके इसको अप्रूव किया. योर सिग्नेचर इज वैलिड, जेन्युइन. 85C says electronic signature certificate. Here we were under B we were discussing only about electronic signature, but under C we are discussing about certificate. Then in that case court shall presume that the information listed in the certificate is correct. सर्टिफिकेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है ना, कब से कब तक वैलिड होगा, किसका सिग्नेचर है, क्या डेट है, द पर्सन बिलोंग्स टू विच प्लेस, फॉर व्हाट पर्पस ही विल बी यूजिंग द सिग्नेचर. ओके, सारा लाइबिलिटी एंड सब कुछ होता है. तो इन दैट केस कोर्ट विल प्रिज्यूम इट इज परफेक्टली करेक्ट, नथिंग इज फैब्रिकेटेड. 86 says that certified copies of foreign judicial record then court may presume. फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड का कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा ही लेगा, नॉट नेसेसरी कोर्ट यहाँ पे इसका जुडिशियल नोटिस लेगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. हियर इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट वेदर टू बिलीव इनटू द जेन्युइननेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट और द कॉपीज और नॉट. तो यहाँ पे मे प्रिज्यूम होगा एज टू द जेन्युइननेस एंड एक्यूरेसी. जब भी मे प्रिज्यूम हुआ मतलब सेक्शन नंबर 4 रिकॉल कीजिए, व्हिच सेज दैट it will be the discretion of the court either to accept it or to reject it, and if they want they can call for further evidence to disprove it or to challenge it. Who can prove or who can get the further evidence is parties. Section 87 says if the presumption has to be made as to any book, map or chart, then the court may presume that it was written or published by person by whom it purports to be written. मैंने कोई बुक लिखी है, आई वॉन्ट कि कोर्ट माने कि हाँ जी मैंने बुक लिखी है, बट सेक्शन नंबर 87 सेज मैम सिर्फ कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो ये मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं कि जो बुक पे आपका नाम लगा है ना वो आप ही के द्वारा लिखी गई है या आप ही के द्वारा पब्लिश की गई है, और इट हैज बीन made or written or published at that time and place which purports to be written on that book. purports to be मतलब जो लिखा हुआ है वो जो दिख रहा है उसी समय पे या उसी जगह पे वो बुक को पब्लिश या राइट किया गया था, लिखा गया था. 88 says and 88A दोनों ही किससे डील करते हैं? मैसेज. कौन से मैसेज? टेलीग्राफिक मैसेज. 88 डील करता है टेलीग्राफिक से, 88A करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से. 88A says that if any electronic message has been forwarded to telegraph office, then court will take the presumption
that it corresponds with the message delivered for the transmission, कि हाँ जी ये वही मैसेज है जो कि आपने टेलीग्राम ऑफिसर को भेजा था, जो आप चाहते थे कि कंसर्न्ड पर्सन को पहुंचे, ये वही मैसेज है जो कि आपने ट्रांसमिशन में डिलीवर किया है। मतलब इट्स करस्पॉन्ड्स विद द एड्रेसी, ये वही मैसेज है जिसे आपने भेजा है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। किस तरह की प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी? बाय whom it was delivered। अब मेरे फोन से अगर किसी को मैसेज गया है तो ये माना जाएगा कि जो मैसेज यहाँ से टेलीफोनिक ऑफिसर या अथॉरिटी को गया है, ये वही मैसेज है जो कि मैं कंसर्न A, B, 3 या किसी भी पर्सन को ट्रांसमिट करना चाहती थी। लेकिन ये कोई प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा कि ये मैसेज तो शिवानी मैम ने ही भेजा है। Why no presumption will be taken? Because it might be possible कि मेरा फोन चोरी कर लिया गया हो, या मेरा फोन कहीं रह गया हो, या किसी रिलेटिव ने भेज दिया हो। Understood? So no such presumption. 88A says इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अगर भेजा गया है तो सेम वही माना जाएगा that it corresponds with the message fed into the computer। जो मैसेज आपने ओरिजिनेटर को भेजा है, कहां पे? बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर पे जो भेजा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है उसी मैसेज से जो कि आपने अपने कंप्यूटर में फीड किया है। 89 says ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगा? कोर्ट शैल प्रिज्यूम that even if such document is not produced before the court, the document is duly attested, stamped, executed as required by the law. As required by the law, it is attested, stamped and executed. And last two section for today is section number 90, जो कहता है अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 30 years old है and it is produced from any custody, किसी भी पर्सन की कस्टडी में था और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, कोर्ट may presume that the document was duly attested plus it was executed and it is in that person's handwriting by whom it purports to be written. For example, मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये मेरे फ्रेंड की कस्टडी में था from last 30 years, है ना, which is not possible, okay, which is not possible because इतना तो मैंने जिंदगी नहीं जिया अभी तक, okay, ठीक है। So in that case, अब अगर यहाँ पे फ्रेंड की कस्टडी से वो डॉक्यूमेंट आता है जो कि मेरी हैंडराइटिंग में कहा जा रहा है, which is being stated that yes, ये तो शिवानी मैम की राइटिंग है, पता नहीं शिवानी मैम भी कहाँ गुम हो गई, but yes, this is in the handwriting of शिवानी मैम, then in that case court will presume that yes, it was duly executed, it was attested and it is in the handwriting of शिवानी मैम only। एंड वहीं पर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने प्रोड्यूस किया है जो कि 5 साल पुराना है, then the same presumption, that is the same kind of presumption, that is may presume, court may presume that particular electronic signature of person by whom it purports was affixed by him or person authorized by him। तो जब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है जिसपे कि मेरा सिग्नेचर है और वो 5 साल पुराना है, 5 साल पुराना है और किसी पर्सन की कस्टडी में से आया है, then in that case court will presume that उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो उसी पर्सन का है जो कि जिसका सिग्नेचर इस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे दिख रहा है, या तो इसने खुद साइन किया है या फिर किसी पर्सन को खुद से ऑथराइज किया है उस सिग्नेचर को करने के लिए। So this was the session from 61 to 90A. I hope certain things are clear and थोड़ा रिविजन जरूर हुआ होगा। Now we will come on to some of the questions and then we will sum up the session. Before beginning with the questions, do not forget to download PW app and do not forget to join the Telegram channel लॉ वाला, जहाँ पे आपको क्लासेस का सारा अपडेट मिलने वाला है, जहाँ पे PW ऐप पे जहाँ से आप अपनी क्लासेस को डाउनलोड कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। Chapter number 5 of Indian Evidence Act, it deals with what? It deals with oral evidence, documentary evidence, burden of proof और witnesses। किससे डील करता है हमारा chapter number 5, 61 to 90A? It deals with your documentary evidences. Next, content of document may be proved by primary or secondary, examining a witness who has not seen the document, or by taking extraneous evidence into consideration or without any evidence। हम सेक्शन नंबर 59 में ये पढ़ के आए कि हर फैक्ट को कैसे प्रूव करना है, ओरल एविडेंस से प्रूव करना है।
ओके। सेक्शन नंबर 61 ये कहता है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन सेक्शन नंबर 64 क्लियरली सेज दैट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आप कैसे करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइमरी एविडेंस से करेंगे, बट इन सर्टन केसेस सेक्शन नंबर 65 के अंडर आप सेकेंडरी एविडेंस से भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। Question number 23 which says section 62 of Indian Evidence Act deals with primary evidence, secondary evidence, proof of documents by primary evidence or cases in which secondary evidence relating to a document may be given. Section number 62 किससे डील करता है बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? हम ऑलरेडी चार्ट बनाए थे, 61 में हमने इनका जनरल रूल बताया, 62 में हमने प्राइमरी एविडेंस को बताया, 63 में हमने सेकेंडरी एविडेंस को बताया, 64 में एक और जनरल रूल पढ़ा, 65 में हमने वो सेक्शंस पढ़े वेयर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन व्हेन योर प्राइमरी एविडेंस इज नॉट देयर। 66 मेंशंस अबाउट दैट you have to give the notice when you want the secondary evidence to be produced under your section number 65. So right answer over here is primary evidence. Section number 62, primary evidence. Okay. Which one of the following section deals with admissibility of electronic records? See, there is a very lengthy section, section number 65B, which you need not read because वहां से ज्यादातर questions नहीं बनते, so do not right now focus or shift your area of focus on 65B. Okay. Next, which special provision regarding proving of records have been inserted in Indian Evidence Act by Information Technology Act 2000? ईयर 2000 से इंसर्ट हुई है चीजें, अमेंड नहीं। इंसर्शन किसका हुआ है? 56 ए और बी तो ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज 56 to 58 डील्स विद फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। 65 ए एंड बी, हाँ जी ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। 55 ए और बी भी डील नहीं करता है, उसमें हमारे पास आगे और कुछ प्रोविजंस है नहीं बिकॉज इट डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। सो द राइट आंसर विल बी 65 ए एंड 65 बी। Which one of the following is not a secondary evidence? Means 63. Section number 63 को दिमाग में रखना है। Copies made from original by mechanical process, yes आता है secondary evidences में। क्या हो जाएगा इसका? Photocopy, best example. Copies made from or compared with original means handmade. It is handmade. Counterparts of the document, yes ये भी है। Lithography नहीं है। क्या नहीं आता है secondary evidence में? Lithography. Section 74 of Indian Evidence Act deals with testamentary document, non-testamentary document, personal document और public document. 67 से लेके 73 तक तो हमने tabular form में पढ़ लिया था। 74 and 75. 74 deals with your public document and 75 deals with your private document. So the right answer is D. How many years old electronic record? Electronic, okay? Not document, will be deemed to be proved if it is produced from the custody, from any custody which the court in a particular case considers proper. किसी भी custody से अगर proof किया गया है ऐसा electronic record तो कोर्ट उसको proper मानेगा या relevant मान सकता है। कितने साल पुराना होना चाहिए स्टूडेंट्स? इट इज 5 years as per your section 90A. सेक्शन 90A के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर 5 years old है तो if no attesting witness can be found, it must be proved that attesting witness मिला ही नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? attestation of one attesting witness at least in his writing, कि ये जो उसका सिग्नेचर है वो इसी की राइटिंग है, और signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. जो executant है, जो हमारा executant है, उसने जो साइन किया है वो उसकी हैंडराइटिंग में। तो बेसिकली हमको यहाँ पे दो लोगों की हैंडराइटिंग प्रूफ करनी है, एक तो एग्जीक्यूटेंट का और दूसरा एक अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग। सो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ओके, एंड दिस इज एज पर योर सेक्शन नंबर 69. Question number 30, it is that when a number of documents are made by one uniform process, it is not saying mechanical process. Mechanical process होता तो हम secondary evidence में चले जाते. It says यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी. सो मैंने पहले ही बोला था फोटोग्राफी किस में आता है? प्राइमरी एविडेंस में. ऑलवेज रिमेंबर, फोटोग्राफी कभी भी सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आता है. ओके, ईच इज secondary evidence of the content of the rest, primary evidence of the content of the rest, direct evidence or documentary evidence. So it will be the primary evidence of each
of the content of the document. Okay, it is as per your section number 62, right? सेक्शन नंबर 62 में ही हमें मेंशन करके दिया है कि प्राइमरी एविडेंस कहाँ पे है, यस और नो. एंड 63 में हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी एविडेंस. व्हाट आर सेकेंडरी एविडेंसेस? ओके, अ डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए. दैट डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी इफ द डॉक्यूमेंट इज purporting or proved to be 30 year, 15 year, 12 years old, court may presume that it is an A's handwriting. So this has come from section number 90, according to which if the document, अगर डॉक्यूमेंट की बात है तो सेक्शन नंबर 90 के अकॉर्डिंग 30 इयर्स. अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात होती तो वहां पे हम 90A का सेक्शन का यूज करते और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितना पुराना होना चाहिए, 5 इयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 32 which says which one of the following section of Indian Evidence Act is related to presumption as to electronic agreement. presumption as to electronic agreement की बात की है, मतलब सेक्शन नंबर 85 के बाद A, B, C. यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रिकॉर्ड्स एंड साइंस के बारे में. A फॉर एग्रीमेंट, 85A मींस एग्रीमेंट. ओके, यस, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप ये जो छोटा सा हमने रिविजन किया है वो काफी हेल्पफुल रहा होगा. इतना रिविजन along with the previous year question papers and other state judiciary के previous year question papers, I think this is more than enough for you for last few revision days. अब आपके हार्डली हम कह सकते हैं कि मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं आपके एग्जाम से. सो आई रियली विश यू ऑल परफॉर्म बेस्ट. और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लॉ वाला टीम से, यू कैन लेट अस नो how you like the session. Do comment because that definitely boosts our confidence and our team's confidence. And last but not the least, PW app download करेंगे. You all have been looking for the PDF वही मिलने वाला है. लॉ वाला चैनल, दिस इज टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन करेंगे so that you get all the latest updates of all the teachers, all the educators. And do not forget to watch all the sessions from all the educators, be it your IPC by Akriti ma'am, be it your CPC by Jatin sir, be it your TP Act by Vivek sir, or be it your Indian Contract Act by Advait sir. So do watch all these sessions because they are equally important. Why equally important I'm saying students? Because हर subject से 15 questions आते ही आते हैं. 15 questions आते ही आते हैं. We have already covered minor laws. Minor laws का classes देखना ना भूले. Minor laws के DPPs और questions जो हमने discuss किए हैं class में, do watch that. And now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.